Now you are audible. Hello. Hello, you are Yeah, audible. it's audible, sir. So, Okay, yes, sir, it's audible, sir. okay. So, dear learners, welcome to today's session. So, I must welcome to our senior academic counselor, Dr. Nand. I do hope yesterday you all of you enjoy Sir's class. So, with these words, I don't want to take much time. No doubt it's a very, difficult period we're passing on. I mean, nowadays this due to this pandemic, everybody is in the stocked down in the home. Whatever the things, this pandemic, has taught us in one new things. Using technology. This online counseling classes. So before to that, you are not used to that. No doubt in distance education, we believe on distance education. You are using technology, but in true sense, regional center is not ever. Never ever had conducted online counseling classes because you are believing on face to face mode. In every system, the human touch is a different kind of test. But nowadays, I mean, this is not possible to go to the study center and to organize any kind of counseling. So what you are feeling, just to bridge the gap between the learners and the counselor, with the learners and the regional center Bhubaneswar, to just to facilitate our learners to give the academic input, and whatever the assignment problem or whatever the student support service problem they are facing, just you are trying to facilitate to all the learners. But our repeated efforts, I don't know why the students are not joining in the much number and a good number. So still we hope that in the future, I request to all the learners whom you know, your friends, tell them kindly they should join in the online class. So that it will immensely help to all the learners. With these words, I mean once again I request to our counselor Dr. Nand, go ahead, sir. Hello. Am I audible, Yes, sir? yes, yes. Now you are audible. Huh, sir? Okay, Yes, sir. You start your presentation, sir. okay, sir. My dear friends, you are all welcome to this session. That is block one, and in this session, we'll we'll go through two units. That is unit three and unit four. The unit three deals with nationalism or national discourse. ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇଗ୍ରାମ କରିଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ନର୍ସଲରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପରେ ଦେବି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି characteristics of nationalism and the national discourse, why it is so important when we study India as a whole। ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଜାତୀୟତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଅନୁଶୀଳନ। This is a very important area that everybody should know। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଇଗ୍ନୁ ଥ୍ରୁରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଟିଟବିଟ୍ କରି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ମାନେ ଜାତୀୟତା ଯେଉଁ କଥା, ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବେସିକାଲି ଆମେ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏରା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏରା। ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏରା ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ସେଠୁ ତାର ବ୍ୟାକ୍କୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ଭାରତରେ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟ। ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟା ଉଭୟକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜାତୀୟତାବାଦ, ନେସନ୍ ହେଉଛି ଜାତି ଆଉ ଇଜମ୍ ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାଦ। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ଟା କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ପୁଣି ତାକୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରି କଲୋନିଆଲ ଫେଜ୍
अनदर वन इज कॉलोनियल फेज एमाने समस्त रहिले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड रे नेक्स्ट वन इज पोस्ट कॉलोनियल फेज जो कॉलोनियल फेज कथा आम डिस्कस करिचे प्रीवियस क्लास रे एवं से कॉलोनियल फेजटा हूँ ब्रिटिशर्स रूल समय कथा एवं ब्रिटिशर्स माने भारत को आसी से माने भारत को 100 वर्ष धरी नियरली 100 इयर्स से माने शासन करिसेंती एवं से कॉलोनियल समय परे से माने जो जो जिनिस करि जाइछन्ती भारत रे तार परवर्ती समय दैट इज पोस्ट कॉलोनियल पीरियड एवं ए जो तीनटा भाग रे हमें विभक्त कले नेशनलिज्म रो कांसेप्ट को बुझीबा को हेले एवं ताको मध्य आमे अन्य दृष्टि कहि परिबा दैट इज प्री नेशनलिज्म नेक्स्ट फेज ला ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म हाउ ए नेशनलिज्म कांसेप्ट ओरिजिन करिछि एवं परवर्ती समय रे नेशनलिज्म एंड वन नेशन कांसेप्ट जोटा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड परे आमे सेटा को देखुचे तेणु ये जो प्री नेशनलिज्म स्टेजटा साधारणतः तीनटा भाग में विभक्त हुए गोटे हूँ इनसाइड रूलर्स से माने किए किए हेले ना राज्य और विभिन्न प्रकार माने भारत को विभिन्न राज्य रे विभक्तिकरण कराइतला एवं सेही राज्य गुड़ाक विभिन्न राजांक द्वारा शासन रे रहितला एवं से राजा माने सब कौन करद राजा राजा एवं महाराजा तेणु एमाने गोटे गोटे प्रोविन्स रो गोटे गोटे एरिया रो गोटे 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 किंगडम से माने एस्टाब्लिश करथिले भारत रे परवर्ती समय रे आसिले आउटसाइड रूलर्स ए राजा माने भारत रे शासन करथुवा समय मु प्री नेशनलिज्म कथा कहूची जेतबळे हमर नेशनलिज्म कांसेप्ट गोटे सृष्टि ही नथला देखा देई नथला सेही समय कथा मु कहूची जो समय रे ए इनसाइड रूलर्स माने भारत रे तांकर शासन करुଥିଲେ तांका भितरे कॉन्फ्लिक्ट थिला तांका भितरे सौहार्द मध्य थिला परस्पर भितरे लिंक रखी से माने शासन करुଥିଲେ केतेक राजा से माने तांकर प्रभुत्व विस्तार करने पे अन्य राज्य आक्रमण करी ताको अख्तियार करुଥିଲେ सो एटा होची इनसाइड रूल्स सेतबळे नेशनलिज्म कांसेप्ट नथिला निज राज्य को केमिति से माने तयारी करिवे एवं ताको एक्सपांड करिवे सेटा थिला तांकर कांसेप्ट नेक्स्ट जो माने आसिले से माने आउटसाइडर्स को माने आमे माने जानिछे से माने हेले मोगल्स हुन्स अफगान्स एमाने सब भारत को आसीचंती विभिन्न समय रे एवं भारत को आसीबा परे से माने भारत रो विभिन्न राजा को परास्त करचंती एवं भारत को अख्तियार भीतर को आनिचंती तांका कंट्रोल भीतर को आनिचंती एवं से माने तांकर शासन गादीटे को एस्टाब्लिश करिचंती भारत रे एमाने हेले आउटसाइडर रूलर्स एवं परवर्ती समय जो माने आसिले जो समय यही आउटसाइडर रूलर्स एवं राजा माने शासन करुले भारत रे से माने तांकर निज निज राज्य रे निज निज राज्य को एक्सपांशन करिया पई से माने जो काम करुले से समय आउ गोटे ग्रुप रो लोक माने आसिले जोटा कि प्री नेशनलिज्म स्टेज और प्री कॉलोनियल स्टेज बोली आमे कहूचे जोटा को आमे प्री इंडिपेंडेंस स्टेज कहूचे सेही समय आउ जो माने आसिले से माने हेले डच ब्रिटिशर्स पोर्तुगीज एमाने एमानकर मेन आसबार कारण हूँ से माने आसीथिले भारत बोली गोटे कौन जिनस अच्छी ताकू डिस्कोर्स करने विभिन्न लोक माने जो माने गत क्लास भल भाव डिस्कसन करी जो माने आसीथिले ट्रावेलर्स हिस्टोरियन माने से माने आसिकी भारत रे पहुँची भारत विभिन्न चालीचलन विषय तांकर कल्चर विषय तार उत्थान पतन ए विषय से विविडली डिस्कसन करिसेंती एवं ताकू ये आखि आगे रखी से बही पढ़ी से धीरे धीरे आ भर को इन कर को मैंने डच ब्रिटिशर्स पोर्तुगीज एम समस्त आसी विभिन्न समय एवं से आसवा पर मेन उद्देश्य थिला भारत सहित बिजनेस करिया एवं बिजनेस करू करू से भारत विभिन्न एरिया को से भ्रमण में जाइछंती बुलीचंती एवं भारत जो रिच कल्चर देखी से बहुत परिमाण में आप्यायित हो जाइछंती एवं विभिन्न जगार जो पर्टिकुलरली कहि बॉम्बे कालिकट चेन्नई जोटा कि आम मद्रास कलकत्ता ये एरिया रे जो गुड़ाक समुद्र कूल राज्य सब रही से बसति स्थापन कर आरंभ कर ब्रिटिशर्स माने प्रथमे आसी पहुँचते कलकत्ता रे
कलिकता जोटा आमर कलिकता पहुँचला से प्रथम आसी व्यवसाय करने एवं व्यवसाय करू करू से चिंता कले जे आमे भारत को भारत रे शासन करने करूँ कहीं से भारतीय शासन करने से चिंता कले देखिले सबू राजा माने भितर एकता नहीं से परस्पर भितर कन्फ्लिक्ट रही से कन्फ्लिक्ट से देखिले जे आमे जदि गोटे ग्रुप को आम अख्तियार को आणबू तारी थ्रू रे आमे धीरे धीरे अन्य राज्य गुड़ा माने अधिकार कर भितर सबुठार गोटे इम्पोर्टाट माने कैरेक्टरिस्टिक रही मूल कथा रही मूल कथाटा कौन मूल कथाटा से भारत को अख्तियार करवा समग्र भारत को से कंट्रोल भीतर को आनिबा एठू बहुत हुए आरंभ होइछे द ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म भारत हेलो सर एठू बहुत हुए आरंभ होइछे द कांसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म जोटा कि प्रथमे एई आर मूलदुआ आरंभ करथिले कि ब्रिटिशर्स माने चाहिए यही समग्र राज्य भारत वर्ष को निज अधिकार को आनिबे एवं ताको शासन करिवे किंतु ता पूर्व अनेक राजा मध्य आसी यू नो दैट अशोक द ग्रेट सी मध्य चाहिए समग्र भारत भूखंड को निज अख्तियार को नेबे एवं भारत को शासन करिवे एटा मध्य गोटे वन वे ऑफ नेशनलिज्म बुझला तेणु आमे जो प्री नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट को एम्फासिस दौचे एवं से आमे ताको तीनटा भाग रे व्यक्त कले एवं ए तीनटा भाग रे प्रथम हेले किंग्स सेकंड हेले आउटसाइडर्स दी मोगल्स हुन्स अफगान्स एमान सब हेले आउटसाइडर्स थर्ड हेला डच ब्रिटिश पोर्तुगीज एंड देयर आर मेनी अदर्स सेकंड फेज जोटा मु कहली हमर जो कॉन्सेप्ट हला नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट केमती ओरिजिन कला से नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट रो तार मेन फीचर हला प्रथमे ए जो प्रथम कही जे राजा राजा माने भारत को शासन करते से भितर अशोक अशोक चाहिए समग्र भारत को अख्तियार करवा एवं सबू राज्य को से निज कंट्रोल को आनिक निजे चक्रवर्ती हवा चक्रवर्ती गोटे कॉन्सेप्ट जो चक्रवर्ती कॉन्सेप्ट अर्थ हूँ समग्र भारत वर्षर चक्र माने मौडमणि हे किंग हे कौन सी करद राज्य रही कौन सी राजा से रही अशोक समग्र भारत को शासन करेंगे तेणु दिस इज ए अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म नेक्स्ट एमती अनेक राजा मत चेष्टा करिसंती अफगान्स माने हुन्स माने मोगल्स माने से भी चेष्टा करिसंती समग्र भारत को अख्तियार करने पाई किंतु पारि नांती न पारिबार मेन कारण हूँ जे अनेक गुड़े राजा थिले बहुत शक्तिशाली एवं से शक्तिशाली राजा को परास्त करवा से पाखे एत सहज नाला एवं से भितर जो जो राज्य थिला से राज्यटा केवल द्वारा ही शासित होता ता नुहे सहित सहयोग करने अनेक गुड़े छोट छोट राज्य थिला तेणु से जो युद्ध होता समस्त एकाठी हो जाते एवं ये जो फरेनर्स माने आसी भारत वर्ष को कि मोगल्स हुन्स अफगान तांको भितर सब युद्ध करते तापर से अख्तियार भितर को आनी पार नापर आसिले ब्रिटिशर्स माने यही ब्रिटिशर्स माने बहुत चालाक से माने बिजनेस करने सहित भारतर भितर विभिन्न एरिया रे विभिन्न जगह रे बिजनेस करने सहित भारत को अख्तियार करने दीटा जिनस छल कल बल ये तीनटा जिनस को से विनियोग करने को आरंभ कले प्रथमे छल कले तापर बुद्धि खर्च कले कल हूँ बुद्धि आउ शक्ति शक्ति हूँ दैट इज मिलिटरी पावर तेणु ये जो तीनटा कॉन्सेप्ट आसिला ब्रिटिशर्स माने से माने सबू राजा मान को एकाठी करी माने निज भीतर को निज कंट्रोल भीतर को आने आरंभ कले तेणु जो राजा माने कंट्रोल भीतर को आसिले से माने सब प्रकार फैसिलिटी दिगला एवं ब्रिटिशर्स माने धीरे धीरे थ्रू रे अन्य राज्य मान को निज अधिकार को आने एवं यू आरंभ है समग्र भारत को अख्तियार भीतर को निज कंट्रोल भीतर को आने प्रयास एवं यू को सृष्टि है नेशनलिज्म कैरेक्टर किंतु एक घटना चली कौ समय पर्यंत जेपर्यंत भारतर स्वाधीनता संग्राम आरंभ न 1856 मसीह
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କହୁଛେ, ତା ପରଠାରୁ ଯୋଉ ସମୟଟା ଆସିଲା ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ସମୟ 1856 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବିରାଟ ସମୟ ତା ଭିତରେ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ତା ଭିତରେ ଘଟିଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କର ରାଜୁତି ଉପରେ ତାଙ୍କର କଲୋନିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉପରେ ବହୁତ ମାନେ ଖପା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ କି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସୁନି, ରାଦର ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜର ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ଦେଶକୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଲ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ତଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆ ଦ୍ୱାରା କୋଉମାନେ ପ୍ୟାଟ୍ରିଅଟିକ ରୋଲ ନେଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଦର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ମୁଁ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟଲି କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ। ଅହିଂସା ଥ୍ରୁରେ ସେ ଚାହିଁଲେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯୋଉ କରତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକା ମାନେ ୟୁନିଟି ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି କରତ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ସେଇ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସେମାନେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଭାରତ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେ ହେଉଛ ଏଇ ଭାରତର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ କିଏ ହେଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଡଚ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରିଟିଶ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ହୁଲ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋଗଲସ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତରୁ ତଳିବାକୁ ହବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା ସେଇଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜାତୀୟତାବାଦ। ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିଡର୍ସ ସେମାନେ ଇମର୍ଜ କଲେ, ନୂଆ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିଡର୍ସ ସେଥିରୁ ବାହାରିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିଡର୍ସ ମାନେ ଏଇ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟଟା ଉଦ୍ରେକ ହେଇଛି ତା ନୁହେଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଜନାଲ ରିଭୋଲ୍ଟସ ହେଇଛି। କୋଉମାନେ ରିଜନାଲ ରିଭୋଲ୍ଟସ କରିଛନ୍ତି? ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ ମାନେ କରିଛନ୍ତି, ରିଜନାଲ ଏରିଆରୁ ମଧ୍ୟ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, ଗୋର୍ଖା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ହବାର ମେନ୍ କାରଣ କ'ଣ? ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ସେମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ହେଇକରି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲି ତିନିଟା ଫେଜ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ, ପ୍ରି ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ନେସନ୍ କନସେପ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଡିସ୍କୋର୍ସ। ଆମେ ଜାତୀୟତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ଜାତୀୟତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅନୁଶୀଳନ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଇଛି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭାରତକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ସେଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ରିଚ୍ ସଂସ୍କୃତି, ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ସେଇ ଉନ୍ନତ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭରସିଟି ରହିଛି, ଡାଇଭରସିଟି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି, ବେଶ ପୋଷାକ ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିନ୍ନ, ଏରିଆ ଭିନ୍ନ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭିନ୍ନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତ୍ରିତତା ରହିଛି, ଏକାଗ୍ରତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ସନ୍ତାନ, ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ସେଟା କେବଳ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ଏତେ ଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକା ହବାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ସେଟା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦର ଲିଡର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ଏମାନେ ସବୁ ଜାତୀୟତାବାଦର ଲିଡର୍ସ ନୁହେଁ, ବହୁତ କବି, ଲେଖକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ,
विभिन्न प्रकार जो फोकलोर माध्यम लोककथा माध्यम से भारतर जो रिच ट्रेडिशन को लोक मान पाखे पहुँचे से तुम मैंने गर्व कर कारण कहूँ ये तुम समस्ते भारतर संतान तेणु जिते प्रत्येक लोक निजे चिंता करूँ भारतर संतान से भितर नेशनालीजम कनसेप्ट आस बर्तमान सब बुझीपार तो नेशनालीजमटा कौन एवं केमी उद्रेक होती विभिन्न इनसीडेंट को लेकर अतीतर विभिन्न घटनावली को लेकर से जिनसटा भितर उद्रेक है तापर आसला आम प्रीवियस जिनसटा जानिले नेक्स्ट आमर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया एंड नेशनल कैरेक्टर जो जातीय चरित्र आम कहूँ जातीय चरित्र इंडिपेंडेंट इंडिया पर जो भारत स्वाधीन हो गला एवं से स्वाधीन भारतर प्रत्येक व्यक्ति तार गोटे स्वतंत्र कैरेक्टर पाखे रही से कैरेक्टर तैयारी कला कॉलोनियल समय आम कहीं कॉलोनियल कथा कहूचे द ब्रिटिशर्स और इट ब्रिंग्स ए ड्रास्टिक चेंज इन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एजुकेशनल इंडस्ट्रियल एंड स्फीयर आम कॉलोनियल पीरियड को जो ब्रिटिशर्स मान पीरियड कथा मुझे से कहीं आम एत एम्फासिस दौचे से समय साधारणतः भारत में गोटे बड़ धरण परिवर्तन घटी किंतु राजा राजुड़ा समय से प्रकार परिवर्तन आसी ना किंतु ब्रिटिशर्स माने जो समग्र भारत को एकाठी करने चेष्टा कले से बहुत गुड़े परिवर्तन आने चिंता कले एवं से परिवर्तन कौन आसला ना सोशल स्फीयर आसला इकोनॉमिक स्फीयर आसला पॉलिटिकल स्फीयर आसला और एजुकेशन रे आसला इंडस्ट्रियल स्फीयर तेणु भारत में धीरे धीरे जो सोशल कन्फ्लिक्ट थिला ताकू से माने मिटिगेट करने को आरंभ कले गोटे सोशल कन्फ्लिक्ट कौन ये जो सतीदाह प्रथा चाइल्ड मैरेज कथा ये जो जिन गुड़ाक तुम जान एवं से जो कनसेप्टा से माने धीरे धीरे सोशल जिन को स्ट्रंग करने को आरंभ कले इकोनॉमिक भारत से जानिले भारतीय माने बहुत गरीब एवं तांको इकोनॉमिकल जदि आम स्ट्रंग न करूँ से भल टैक्स दे पारे भल एग्रीकल्चर जदि न हो कम्युनिकेशन फैसिलिटी जदि न हो ताली इकोनॉमिक स्टैंडर्ड डेवलप हो पारे तेणु से चिंता कले केमती बेटर इकोनॉमिक कंडीशन से दे हम थर्ड जिन पॉलिटिकल स्फीयर रे एवं पॉलिटिकल स्फीयर रे आगुरी कहीं जानी नथिले जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्टा साधारणतः राजा माने ही बुझुथिले किंतु वर्तमान से जानिले जे लोक माने जदि पॉलिटिकल स्फीयर को जानबे ताहले ब्रिटिशर्स मानकर पॉलिटिक्स को बुझिबे तांकर रूल्स रेगुलेशन एगुड़ा सब बुझिबे ताहले से माने बेटर सिटीजन हो पारिबे बेटर लॉयल हो पारिबे सिटीजन मतलब होची कोन तांको प्रति लोक मानकर लॉयलिटी बढ़िबो तेणु पॉलिटिकल स्फीयर रे से माने ताको उन्नति करने को चेष्टा कले नेक्स्ट आसला एजुकेशन एजुकेशन टाको से माने तांकर जो मॉडर्न एजुकेशन माने को ये माने ब्रिटिशर्स ढांचा रे इंग्लिश टाको से माने इंट्रोड्यूस कले जहाँपर बहुत लोक तांको बुझी पारिबे एवं से माने लोकों को बुझी पारिबे तेणु कम्युनिकेशन भीतर रही पारिबो तेणु एथरे कॉलोनियल रूलटा इनडायरेक्टली भारत को गोटे सुंदर माने नेशनलिज्म कनसेप्ट को ग्रो करने परोक्ष बहुत साहय करथिला तेणु ब्रिटिशर्स माने भारत को कौन माने जो शासन कले दुईटा कैरेक्टरिस्टिक्स रे ताको व्यू करथिले आमे तो सेटा गत क्लास रे भी पढ़ीचे जिते आम भारत को बुझा चाहूचे जो इंडोलॉजिकल अप्रोच आम भारत को चाहूचे आम दुईटा कनसेप्ट को आम देखिले गोटे हूँ कॉलोनियल पर्सपेक्टिव रे आउ गोटे हूँ मिशनरी पर्सपेक्टिव रे आम जोटा कि गत काली आम पढ़ीचे जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव कौन मुझे डिटेल बुझे सारी मिशनरी पर्सपेक्टिव से बुझे सारी किंतु ये जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव और मिशनरी पर्सपेक्टिव भितर गोटे एसेंस से छाड़ी जाइछंती जो एसेंस होची द इंडोलॉजिकल अप्रोच कैरेक्टराइज्ड बाय एथनोलॉजी कास्ट रिलीजन एक्सेट्रा द कोर ऑफ इंडियन नेशन आम भारत जो कोर एरिया में कहूचे भारत जो कोर एरिया से कोर एरिया क्या डिपेंड करे क्या बेस करमती गोटे घरटा विभिन्न तार कांथ द्वारा रेस्ट करी विभिन्न पिलार द्वारा छातटा रेस्ट करती भारत जहाँ को आम भारत बोली कहूचे एंटायर भारत से भारत क्या रेस्ट करना ना एथनिसिटी विभिन्न कम्युनिटी लोक अच्छा आदिवासी अच्छा कास्ट पीपुल अच्छा रूरल पीपुल अच्छा अर्बन पीपुल अच्छा तेणु एमाने सब विभिन्न प्रकार एथनिक ग्रुप लोक सब विभिन्न एरिया सब रही आदिवासी भितर केते प्रकार आदिवासी सब रही
कास्ट ग्रुप रे अनेक गुडी कास्ट ग्रुप रही रिलीजन भितर अनेक गुडी रिलीजियस मेंटालिटी लोक अच्छा सेक्ट लोक अच्छा तेणु एम यही गुड़ाक सब हूँ भारतर मूलपिंड दैट इज कोर एरिया एवं से कोर एरिया हूँ इंडोलॉजी मुझे गत काली एक्सप्लेन करी तेणु ये जो जिनस गुड़ाक आम बुझिले बर्तमान सुधा मुझे नटसेल अति सर्ट्रे रिप्रेजेंट कली तुम ये जो ब्लॉक 1 यूनिट 3 टाक आहरी डिटेल ता भीतर को आम जा यहाँ को जटापटे मुझे तार प्रिंट आउट गोटे कर देख यही प्रकार जो जदि तुम गोटे करदेव यही प्रकार गोटे सिस्टम करदेव सो दैट तुम प्रत्येक पॉइंट को आम बुझीपर और एलाबोरेट कर जापर देखी तो तेणु आम नेक्स्ट एरिया को आसवा द इंडियन नेशनल कैरेक्टर व्हाट इज दैट इन इंडियन नेशनल कैरेक्टर आम जो नेशनलिज्म कथा कहूचे से नेशनलिज्मटा गोटे स्वतंत्र कैरेक्टर सृष्टि करम जो मनीष बोली कहे मनीष इज ए कैरेक्टर प्रत्येक मनीष से कैरेक्टर को लेकर ही सी मनीष बोली पदवाच्य हो आम भर जो चरित्र रही से चरित्रटा हूँ केवल निजस्व नुहे यही चरित्रटा अन्य मान द्वारा सेयर हो प्रत्येक लोक आम विभिन्न लोकों संस्पर्श में आसुचे एवं से संस्पर्श में विभिन्न प्रकार चरित्र रही किंतु गोटे यूनिफॉर्म चरित्र हूँ जो चरित्र समस्त को अट्रैक्ट कर समस्त समस्त को ग्रहण करेंगे से प्रकार चरित्र हूँ दैट इज नेशनल कैरेक्टर एवं नेशनल कैरेक्टर हूँ कौन ना जातीयतावाद आम भारतीय यही जिनसा केमी आसला ना देख माने मनकर युद्ध हम युद्ध हेल्ले आम देखुचे कौन सब राज्य गुड़ाक भिन्न भिन्न से फसल कर कल्चर भितर रही लैंग्वेज भिन्न किंतु जिते गोटे कनसेप्ट आसूची भारत को कहीं आक्रमण करुच्ची सबूक राज्यर लोक मैंने एकाठी हो एकाठी होगा फल से कौन कर स्टार्ट फाइटिंग क्या विरुद्ध से निज निज भितर फाइटिंग करने को आरंभ करना से शत्रु विरुद्ध में युद्ध करने समस्त प्रस्तुत हो यूनिफॉर्मली समस्त त्याग करने को प्रस्तुत हो तेणु दैट इज वेरी इंपोर्टेंट थिंग तुम भी जानिच जिते आमर क्रिकेट मैच हुए क्रिकेट मैच रे सब आम से कौन कहू जे आम भारतीय एवं आम भारत विन कर पाकिस्तान विरुद्ध में हो इंग्लैंड विरुद्ध में हो कि भारत विन कर कनसेप्ट है जातीयतावाद कनसेप्ट आमर भिन्नता भितर जो 51% रही ही आमको माने भारतीय बोली परिचय दूसरी आम भारत में जेकोसी जगह में बसवास करें आज आम ओडिशार लोक ओडिशा रोचे काली जदि आम वेस्ट बेंगल को जीवा आम ओडिशार लोक मान जो कैरेक्टर से कैरेक्टर को हरिदेवानी आम बेंगली हो जावानी आम भितर से कैरेक्टर थी एवं आम से बेंगली मान सहित मिसिकी आम 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 आडप्ट करवा आमर केते कैरेक्टर से माने आडप्ट करेंगे सो दैट आम भर चली पार केवल जे भारत में घटुची ता नुहे आम जो बाहर को जाऊे विभिन्न कंट्री को जाऊे आम से भारतीयतार को लेकिन जाऊे भारतीय भितर रही ओडिया एवं से जिते अमेरिका बसवास करुचे आम प्रथम कौन कहे आम भारतीय तेणु दैट इज नेशनलिज्म दैट इज नेशनल कैरेक्टर एवं परवर्ती समय आम कहे ना आम ओडिशा रू आसीचे ओडिशा आमर प्रोविंस आम ओडिया लोक तेणु ओडिशा ए भारतीयता जो आइडियोलॉजी रही जो कैरेक्टरिस्टिक रही दैट इज हूँ नेशनल कैरेक्टर is understood when independent and become a sovereign territory ये जो नेशनलिज्म और नेशनल कैरेक्टर को आम केतबे अनुभव कले ठीक भाव बुझी पाले जिते सॉवरेन टेरिटरी आम पाइले आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे एटा ई वर्डटा लिखाई दैट इज सॉवरेन टेरिटरी व्हाट इज दैट सॉवरेन टेरिटरी where the members share common history language and culture आम सॉवरेन क्या कहे जिते आम समस्ते गोटे कल्चर को आम ग्रहण करें जदिव आम कल्चर सब भिन्न किंतु दैट इज वन कल्चर वन लैंग्वेज से आमर लैंग्वेज हूँ हिंदी और इंग्लिश द सेकेंडरी लैंग्वेज हूँ इंग्लिश किंतु हिंदी हूँ दैट इज कॉमन लैंग्वेज फ्लैग आमर नेशनल फ्लैग हूँ समस्त फ्लैग आमर रिजनल फ्लैग थी पारे किंतु नेशनल फ्लैग गोटे फ्लैग रही नेशनल एंथेम जो आम जनगण मन बोलुचे
ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଲଚର ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ ଯାହା ହଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ। ଏଇ ସିମ୍ବଲଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଆଣ୍ଡ ଏହାକୁ ନେଇକି ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଟି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲିଟିଟା କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲିଟିଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଥ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ loyalty to the nation. What is that belongingness and loyalty? Belongingness ତମେ କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କହୁଛ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଆଇ ଆମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଆଇ ଆମ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିନ୍ସ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୟାଲିଟି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କହୁଛି ଭାରତୀୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଭାରତୀୟର ଭାରତ ମାତାକୁ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଲୟାଲିଟି ରହିଛି ଏବଂ ମାନେ ଆନୁଗତ୍ୟ। ଲୟାଲିଟି ମିନ୍ସ ଆନୁଗତ୍ୟ ମୋର ରହିଛି। ସେ ଆନୁଗତ୍ୟଟା କ'ଣ ନା ଯେମିତି ଆମେ ବାପା ବୋଲି ଜଣକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ ଆମେ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି ଭାରତକୁ ଯଦି ଆମେ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତ ଆମର ମା ମଦର୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମେ କହୁଛେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ମଦର୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ମଦର୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହିବା ଫଳରେ ଆମର କ'ଣ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ଆସିଗଲା ଆମର ସେ ମା। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ ହେଲା ମା ପ୍ରତି ଆମର ଯେମିତି ଲୟାଲିଟି ରହିଛି ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିଛି ସେମିତି ଭାରତ ପ୍ରତି ଆମର ଆନୁଗତ୍ୟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲିଟିଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ଅନଦର ଇଜ୍ ଲୟାଲିଟି ଟୁ ଦି ନେସନ୍। ଆମେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୟାଲିଟିଟା ଏବଂ ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ଟା କେତେବେଳେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡିଜାଷ୍ଟର ଘଟୁଛି। ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଗଲା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ମାନେ ମିନିଷ୍ଟର ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ଦାନ କଲେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଅର୍ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇକରି ଆମେ ସେଇ ୱାର୍କୁ ଯାଉଛେ। ସେଠି କୌଣସି ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ୱାର୍ରେ ଯେଉଁ ସୋଲଜର ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ନୁହେଁ ସବୁ ଏରିଆରୁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା ଚାଲିଚଳନ ଅଲଗା ବେଶ ପୋଷାକ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେ ସୋଲଜର ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ଟୋପି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗନ୍ ସେମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଗୁଜରାଟରୁ ଆସିଛି। ଆମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ ନା ଭାରତୀୟ। ଆମେ ଭାରତରୁ ଆସିଛୁ ଭାରତକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ଭାରତ ମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଭାରତକୁ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ହାତରେ ଆମେ ଟେକି ଦେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ରକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଟି କନସେପ୍ଟ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏତକ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଲି। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଇନ୍ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କନସେପ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତମ ବହିରେ ଆମେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆମେ ସେ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ୁ ନା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ଆଟେମ୍ପ କରିପାରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର କରୁଛେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ତିଆରି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛେ ବହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେ ବହିର ଗୋଟେ ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ସେଥିରେ ରହିଛି କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ମନେ ରଖିବି କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଏବଂ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟାର ବହିଟାକୁ କେମିତି ଅଳ୍ପ ଭାବେ ତାକୁ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିପାରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷକୁ ଖାଲି ହଚପଚରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏନିଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ପ୍ରପର ୱେ। ତୁମେ ପ୍ରପର ୱେରେ ତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନକ୍ସାଟେ କରିକି ଦେଲି। ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ଜିନିଷ ଭିତରେ କ'ଣ ଜିନିଷ ରହିଛି ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ କଲେ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ସାଟା ହେଲା ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କଲେ ସେ ଘର ଭିତରେ କେବଳ ଯେ କାନ୍ଥ ଛାତ ଆଉ ଚଟାଣ ରହିଲା ତା ନୁହେଁ। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରୁମ୍ ରହିଛି। କୋଉଟା ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ କୋଉଟା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କୋଉଟା ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ କୋଉଟା କିଚେନ୍ କୋଉଟା ବେଡରୁମ୍ ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତିକରଣ ରହିଛି ସେଇ ବିଭକ୍ତିକରଣକୁ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହେଉଛି ଭିନ୍ନ। ଆମେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। ଆମେ ବେଡରୁମ୍ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଡାଇନିଂ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ।
बेडरूम केबे डाइनिंग ही परिवनी, डाइनिंग केबे किचन ही परिवनी, तार कॉन्सेप्ट होची भिन्न भिन्न। सेमती आमे एटा को संपूर्ण भारे जेतले नक्शाटा आमे पाइले तापरे आमे कोन करबा ना भितर को जिबा एवं प्रत्येक जो कॉन्सेप्ट गुडा रही ताको आमे बुझिबा को चेष्टा करिया। फास्ट हला आमे डिस्कशन करिचे ता पूर्वरु मु गोटे नक्शा माने नक्शा भितर गोटे एरिया को मु टच करथिली, दैट इज कॉलोनियल पीरियड। हमें जोटा को नेशनल डिस्कोर्स बोली माने सेटा अछि 3.1 तुमरा यूनिट रे, यूनिट 3 रे 3.1 रे अछि कॉलोनियल पीरियड, हाउ ब्रिटिश व्यूड इंडियन सोसाइटी, नेशनलिज्म, that is nationalism is a post independent situation, a nation can be defined as a group of people। हमें नेशन को केमती हमें डिफाइन करछे, जदि हमें क्वेश्चन पड़िबो जे यू डिफाइंड नेशन माने जातीयतावाद को तुम व्याख्या कर, ताले तुम केमिति व्याख्या करिवो। ए नेशन कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज नॉट ए सिंगल पीपल, बट इट इज ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन टेरिटरी। आमे खाली ग्रुप टे कदले आमे छाड़ ये बसिक पाठ पढ़ुचे, दैट इज नॉट ग्रुप। से ग्रुपटा कौन हो ना दैट ग्रुप शेयर ए कॉमन टेरिटरी, गोटे पर्टिकुलर एरिया को से माने शेयर करुथिबे एंड दे हैव ए हिस्ट्री। आमे ओडिया कहूचे, आमे आज ओडिया ही जाइने, वी हैव ए लॉन्ग पास्ट एंड लॉन्ग हिस्ट्री। हमर प्रेडिसेसर्स माने बहुत जिंस हमको देइचंती, आमे तांकठो बहुत जिंस इनहेरिट करिचे, आमे ताको आमर जीवदशा भितर ताको पालन करुचे एवं जहाँ आमर रहिला ताको आमे परवर्ती पीढ़ी को दान करिकी जिबा, ताको देइकी जिबा। तेणु एटी हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, गोटे पर गोटे घटना घटुचे एवं से घटना को परिमार्जित करी आमे ता परवर्ती जेनेरेशन को दौचे, आमर पूर्व पीढ़ी माने परवर्ती पीढ़ी को जेतले दौचे सेटा होची कल्चर। तेणु जो संस्कृति आमे तैयारी हेची एवं से जो संस्कृति को आमे अनुभव करुचे एवं जो संस्कृति को आमे परवर्ती पीढ़ी को दबा सेटा एंटायर सिस्टम टा हला दैट इज कल्चर। तेणु मु कहली ए नेशन कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन टेरिटरी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल मेकअप एक्सेट्रा। तेणु गोटे कॉमन लैंग्वेज आमे हिंदी समस्त जो एरिया को जाऊचे आमे जदि हिंदी कहबा ताले आमे से एरिया लोक मन ताको इजीली बुझी परिबे। आमे नॉर्थ को जाऊचे आमे हिंदी कहूचे, हिंदी प्राय समस्त कहउछन्ते एवं बुझी पारुछन्ते। जदि आमे साउथ को जिबा इंग्लिश थ्रू रे आमे निजर भाषा को कम्युनिकेट करि परिबा। तेणु हिंदी और इंग्लिश दुईटा जो लैंग्वेज रही ये मध्य हमर पूरा एंटायर नेशन को आइडेंटिफाई करुछि। तापरे दि फिजियोलॉजिकल मेकअप, ये जो फिजियोलॉजिकल मेकअप आमे देखुचे विभिन्न प्रकार लोक सब रही किए जो तुम जदि आसामीज मान को देखो, मेघालय लोक मान देखो से फिजिकल फीचर हूँ भिन्न। तुम जब केरल साइड को जीव, केरल जो लोक मैंने अच्छा फिजिकल फीचर भिन्न, हरियाणा राजस्थान ए एरिया लोक मान फिजिकल फीचर भिन्न, किंतु से फिजिकल फीचर भितर आम फिजिकल फीचर को नहीं कहे रेस, किंतु ये फिजिकल फीचर भिन्नता भितर से कर्म प्रणाली भिन्न। कहीं कर्म प्रणाली भिन्न हबार मेन कारण कौन हो ना क्लाइमेट रीजन, प्रत्येक रीजन को नहीं क्लाइमेट बदली जाऊँगी। केतक एरिया रही कोस्टल बेल्ट रे, केतक रही एरिड जोन ने, केतक माने रही पूरा हेवी रेनफॉल जोन ने, आ केतक रही पूरा थर मरुभूमि एरिया रे। तेणु भारतर जदि भौगोलिक स्थिति को आम देखा प्रत्येक एरिया परस्पर भिन्न एवं किंतु एते भिन्नता भितर आमे गोटे नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट को आमे फाइंड आउट करछि, जो पे लिखा है ए नेशन आमे जहाँ को आमे कहूचे नेशन मीन्स इंडिया कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन टेरिटरी, हिस्ट्री, लैंग्वेज, फिजियोलॉजिकल मेकअप एक्सेट्रा एंड ओवरऑल इट मीन सॉवरेन इंडिपेंडेंट नेशन। आमे नेशन क्या कहे ना दैट इज ए सॉवरेन माने सार्वभौम इंडिपेंडेंट स्वाधीन भारत। नेशन कथा मु कही
ये जो नेशन कॉन्सेप्ट को प्रथमे स्टालिन इनकॉर्पोरेट करथिले स्टालिन प्रथमे ताको डिफाइन करथिले कौन से स्टालिन डिफाइन करछंती स्टालिन डिफाइंड एज ए हिस्टोरिकल इवॉल्व्ड community of language, territory, economic life and psychological makeup. Sorry, हाँ psychological makeup. Psychological makeup टा कौन ना psychologically आमे कहूचे आमे भारतीय किबा सेमाने psychologically सेमाने कहउचंती कोन आमे अमेरिकन सेमाने psychologically कहउचंती का रशियन. सो ए जो कॉन्सेप्ट द साइकोलॉजिकल मेकअप ता गोटे होची कैरेक्टर माने नेशन तयारी करिवारे इकोनॉमिक लाइफ जो इकोनॉमिक लाइफ टा होची दैट इज अनदर कैरेक्टर समस्तकर इकोनॉमी अछि इकोनॉमी में वेरी बट सेमाने समस्ते खाद्य तयारी करछंती बेस पोशाक तयारी करछंती पोशाक तयारी करछंती घर तयारी करछंती कल कारखाना रे काम करछंती हमर दैनिक माने मटेरियल कल्चर तयारी करिया पई तेनु दैट इज इकोनॉमिक लाइफ टेरिटोरी गोटे गोटे पर्टिकुलर टेरिटोरी रे हमें ओडिशा कहले माने वी हैव ए टेरिटोरी गोटे एरिया रहिछि लैंग्वेज हमें विभिन्न प्रकार लैंग्वेज आम व्यवहार करछे गोटे होची मदर टंग निजर लैंग्वेज तापर आलाइड लैंग्वेज एवं से लैंग्वेज टा मध्य को नेकरी आमे ताको स्टालिन ए कांसेप्ट को नेशन कांसेप्ट को डिफाइन करछन नेशनलिज्म जिनसटा को मध्य ता पूर्व तुमको एक्सप्लेन करछि ता माने होची व्हेन पीपल शेयर same culture that is a system of ideas and ways of behaving and communication are same and they recognize each other belonging to the same territory. ताले नेशनलिज्म कांसेप्ट है कोन हमर जदि हमें भारत बोली कहबा कोठी हिमालय ठारू कन्याकुमारी पर्यंत एपटे आसाम ठारू सेपटे गुजरात रो मरुभूमि पर्यंत पूरा इंटायर एरिया होची हमें भारत बोली गणना करछे तेणु एठी नेशनलिज्म कांसेप्ट को कौन कहउची ना व्हेन पीपल शेयर सेम कल्चर आमे जदि एंटायर भारत को देखिबा प्रत्येक लोक गोटे प्रकार कल्चर को शेयर करछि माने गोटे प्रकार कल्चर शेयर करछि माने आमे भिन्न कल्चर रही बढिचे किंतु भारत कहले आमे दैट इज वन कल्चर से कल्चर कोन ए सिस्टम ऑफ आइडियाज दैट इज ए सिस्टम ऑफ आइडियाज एवं से आइडिया नेक्स्ट है दि वेज ऑफ बिहेविंग आम केमी बिहेव करुचे आम जो भारत कौन एरिया को आम जाऊे आमर बिहेवियर पैटर्न टा किसी आमर माने स्वार्थ सर्वस्व आम सब ओडिया बोली निजक प्रतिहत करूने आम तांकर सिस्टम सहित कल्चर सहित खाद्य प्रणाली सहित बिहेवियर पैटर्न सहित आम निजक सामिल करुचे एवं दैट इज कम्युनिकेशन आर सेम and they recognize each other belonging to the same territory. तेणु से कहते जे मु ओडिशा रु आसीथिले भी जदि मु गुजरात रे रहउची तेणु मु जने भारतीय ए जो सेम टेरिटरी को जतले शेयर करछंती सिटी आ बाछ विचार रहउनी भेदभाव रहउनी ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और लॉयल्टी बाय मीन्स ऑफ बर्थ लैंग्वेज एंड कल्चर ए जो तीनटा जिंस रहला आमे लॉयल्टी केम आसुची हम भितरे बिलोंगिंगनेस केम आसुची बाय मीन्स ऑफ बर्थ तुम जो पचार तुम कौट जन्म ना मु भारत में जन्म दैट इज बाय मीन्स ऑफ बर्थ देन तुम भाषा कौन ना मोर भाषा हूँ हिंदी वी आर ऑल हिंदी स्पीकिंग पीपल आमर भाषा ओडिया थी पारे किंतु आम निजक रिप्रेजेंट करछु आमर भाषा हूँ हिंदी कहीं भारत भाषा हूँ हिंदी एवं आमर कल्चर कौन ना आमर कल्चर हूँ भारतीय भारतीयता हूँ दैट इज आवर कल्चर मु ओडिशार लोक ही पारे मु गुजरात लोक ही पारे मु हरियाणार लोक ही पारे कि वेस्ट बेंगल लोक ही पारे किंतु मोर कल्चरटा हूँ भारतीय कल्चर भारतीय संस्कृति आम भारतीय संस्कृति बोली कहूचे नेक्स्ट आम पॉइंट को आसवा 3.3 पॉइंट जोटा कि आम बही रही दैट इज नेशनलिज्म नेशनलिज्म विभिन्न एरिया आम प्रत्येक एरिया को भीतर को जीवा फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बिफोर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन नेशन वाज फ्रैगमेंटेड एंड रूल्ड बाय किंग्स मैं एक कथा डिटेल कही द ब्रिटिशर्स ट्राइड टू ब्रिंग ऑल डाइवर्स पावर टू
under diverse power to the umbrella of their one nation national administration. ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି। ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଡାଇଭର୍ସ ପାୱାର, ଯୋଉଟା ସବୁ ଡାଇଭର୍ସ ପାୱାର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ରହିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଏକାଠି କରିକିରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଭିତରକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେଇ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ। The next realization emerged against anti-colonial movement in 1885 by the emergence of Congress. ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କଥା କହିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫେଜ୍ ହେଉଛି 1885 ମସିହା, ଯେଉଁ 1885 ମସିହାରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଏଇ ଭାରତୀୟତା ବିଷୟରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ମିଟିଂରେ କହିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତୀୟତାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଇହେବ, ସେଇ କଥା ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆଣ୍ଟି କଲୋନିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଇ ଆଣ୍ଟି କଲୋନିଆଲ ମାନେ କଲୋନିଆଲ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, କେମିତି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାଇ ଦି ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ୍ କମନ୍ ଫ୍ଲାଗ, language, common common belongingness, এই ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଇନିସିଏସନ୍ ନେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଗ ନେବା, ଆମେ ଯେଉଁଟାକି କଂଗ୍ରେସ ଫ୍ଲାଗ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗ ଅଛି ଟ୍ରାଇକଲର ଫ୍ଲାଗ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଗ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଅରଟର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗ କରିବା ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗଟାକୁ ଆମେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାକୁ ପରିଚୟ କରାଇବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିମ୍ବଲ। ସେଇ ସିମ୍ବଲଟା କ'ଣ ନା ଭାରତକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫ୍ଲାଗ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ରହିବା ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର କନସେପ୍ଟ ଆସିଯିବ, ଆମର ବିଲଙ୍ଗିଂନେସ୍ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ ଏଇ କମନ୍ ଫ୍ଲାଗରୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି, ଆମେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆମେ ଯିବା, ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ବୁଝେଇବା। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ୟାନ୍ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଓଭର ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ସ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆସ୍, ଏବଂ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଆମର କମନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟାକୁ ନେଲେ ଏବଂ ତାପରେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜାତୀୟତାବାଦ, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ କବିତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିରେ ଦେଖାଦେଲା କ'ଣ ନା ଆମେ କେମିତି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ଲଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଫ୍ଲଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେମିତି ଟର୍ଚର୍ଡ ହେଉଛେ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରାଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଟର୍ଚର୍ଡ ହେଉଛେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା କରୁନାହାନ୍ତି, ରାଦର ଆମକୁ ଶାସନ କରି ଆମର ଧନ ସମ୍ପଦ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଯଦି ଆମେ ତଡ଼ିଦେବା, ଆମେ ଭାରତକୁ ନିଜେ ଆମେ ଶାସନ କରିପାରିବା। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ, ଆମର ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ଆମେ ଭାରତକୁ ନିଜେ ଶାସନ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ ସେଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦି ଆଣ୍ଟି କଲୋନିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବାଏ, କେବଳ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଉନି, ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଧର୍ମର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ କିଏ ହେଲେ? ମୁସଲିମ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଜୈନ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମର ଧର୍ମ ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଭାରତକୁ ଆମେ ଆମେ ଶାସନ କରିବୁ। ବାହାର ଲୋକମାନେ, ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ସେ ଆମକୁ ଶାସନ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁସଲିମ୍ସ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ଇନଭଲ୍ଭ।
जो आदिवासी ने बड़ जंगल रोते से धीरे धीरे रिभोल्ट करने को आरंभ कले ब्रिटिश विरुद्ध एवं से बुझा चेष्टा कले कि आमे आमे हूँ आमे जदिव बण जंगल रोचु तथापि आमे हूँ गोटे भारतर संतान एवं एमाने होउछन्ति आउटसाइडर एमाने केवल जे भारत भितर प्रवेश करछन्ति नुहे से आम एरिया को भी प्रवेश करछन्ति आमर बण जंगल पहाड़ सब एरिया को माने सेई जिंस गुडा को से उपभोग करछन्ति सेठु धन संपद से नहीं जाउछन्ति तेणु से केमिति आम पाखु तड़िबा को हबो आम एरिया तड़िया को हबो से जिंसटा मत से भितर आसला तेणु एठी तापर सृष्टि हला तीनटा फेज गोटे होची फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज ये जो फर्स्ट फेज जो कॉन्सेप्ट आसला से फर्स्ट फेजटार समय जिनसटा है प्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन न्यू नहीं प्रोडक्शन ऑफ न्यू एजुकेटेड इंडियन एवं से प्रथम जो फर्स्ट फेज कले जो भारतीय माने गोटे एजुकेटेड हेबे से माने प्रॉपर वे शिक्षा पाइबे एवं तार गोटे मूवमेंट आरंभ कले राजा राममोहन राय राजा राममोहन राय जो मूवमेंट स्टार्ट है फर्स्ट फेज दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन हु कैन अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर वेस्टर्न एंड यूरोपियन कल्चर राजा राममोहन राय एति फोरसाइटनेस थिला जो फोरसाइटनेस पाई से केवल जे भारतर कल्चर को भारतर संस्कृति को बुझी तार में वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर को मत से भल भाव बुझी जहाँफल कि ब्रिटिशर्स को बुझा असंभव हो पार नाला से ब्रिटिशर्स को भल भाव बुझिले एवं भारतीय कल्चर को बुझिले देखिले भारतीय कल्चर और ब्रिटिशर्स कल्चर भितर हेल एंड हेवन डिफरेंस आम आम कल्चरटा हूँ बहुत महान एवं से जिनटा को लोक मान भर को आने को चेष्टा कले किए राजा राममोहन राय क्या द्वारा ना एजुकेशन द्वारा सेकेंड फेज आरंभ है 1885 रु 1905 पर्यंत से समयटा हूँ इमर्जेंस ऑफ मर्चेंट क्लास एंड एजुकेशनल एलिट्स यही 1985 रु 1905 सॉरी 1885 रु 1905 पर्यंत जो सेकेंड फेज आसला से समयटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट फेज जो समय मर्चेंट क्लास जो माने बिजनेसमैन जो बड़ बड़ बिजनेसमैन आसिले से माने ब्रिटिशर्स मान सहित टक्कर देले तेने गोटे मर्चेंट क्लास सृष्टि है बणिक क्लास एवं तापर आरंभ है एजुकेशनल एलिट्स को माने जो माने भारत रे पाठ पढ़ी विदेश रे पाठ पढ़ी से माने आसिले से माने हेले एजुकेशनल एलिट्स जो माने भल पाठ पढ़ी हायर लेवल गले जोटा आईसीएस से आईसीएस जो मैंने पाइले से एजुकेशनल एलिट्स से एजुकेशनल एलिट्स केवल गोटे स्वार्थ से एजुकेशन पाइले से केमी डिसेमिनेट करहब लोक मान पाखे पहुँचे हम लोक मान प्रॉपर वे एजुकेट करहब से जिनटा स्प्रेड ओवर करे हेलो हेलो एक्सक्यूज मी सर यस सर एक्चुअली आईएएस टा ही आईसीएस ना तापर आईएएस हला हेलो सेटा हाँ आईसीएस एक्चुअली आईएएस हाँ इंडियन सिविल सर्विस ना सर हाँ ओके आईसीएस ओके बर्तमान आम जो देखु आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव हाँ सर्विस ओके सर ओके हाँ हाँ तेणु इमर्जेंस ऑफ मर्चेंट क्लास एंड एजुकेशनल एलिट्स से सृष्टि कले माने गोटे कहला सेकेंड फेज थर्ड फेज आरंभ है केतबेले ना 1905 रु 1918 पर्यंत एटा होची थर्ड फेज ए थर्ड फेज समयटा होची पीरियड ऑफ मिलिटरी एंड लोअर मिडिल क्लास ए समयटा होची मिलिटरी पीरियड ऑफ मिलिटरी एंड लोअर मिडिल क्लास उत्थान गोटे मिलिटरी ग्रुप तैयारी हला जो मिलिटरी ग्रुपटा कौन करेंगे द्वारा पैट्रोनाइज बाय सुभाष चंद्र बोस दैट इज मिलिटरी ग्रुप से पर्टिकुलरली ए ब्रिटिशर्स मान विरुद्ध में काम करेंगे समस्त को एकत्रित करेंगे गोटे बड़ ट्रुप तैयारी करेंगे प्रथम से थर्ड फेज कथा एवं गोटे लोअर मिडिल क्लास ग्रुप इमर्ज कला एवं लोअर मिडिल क्लास ग्रुपर मेन कारण काम है सी रिच आउ पोर भितर गोटे सेतुबंध तैयारी कले एवं से माने दे आर मेन वर्कर्स जो जो माने भारत स्वाधीनता संग्राम रे प्रमुख भूमिका ग्रहण करछथि सेटा हला थर्ड फेज रो कथा
फोर्थ फेज आसला केतबेले ना 1918 रु 1934 भितर दैट इज फोर्थ फेज 1918 टू 1934 इज द फोर्थ फेज से समय कौन होता ना एक्सपांशन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट पोस्ट वार इकोनॉमिक क्राइसिस मिटिगेशन तेणु आमर से समय बहुत गुड़े वर्ल्ड वार होती विश्वयुद्ध होती फास्ट फेज सेकेंड फेज विश्वयुद्ध होती एवं से फास्ट फेज विश्व आ सेकेंड फेज विश्वयुद्ध भितर कौन होती ना आमर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डिटोरेट कर बहुत लोक मरी युद्ध एवं से भारतर इकोनॉमिक कंडीशन आती गरीब माने पोर हो जाती रिवाइव करने गोटे विराट चैलेंज थिला एवं एक्सपांशन ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट तेणु भारतीयतार जो मूवमेंट सेटा को लोक मान भीतर केमती आसीबो लोक माने आहुरी निजको स्ट्रांग करिवे भागी पड़िबेनी हारीजिबेनी ये जो कनसेप्टा साधारणतः विभिन्न नेता माने ताकू तैयारी करने को आरंभ कले एटा केतबेले हला 1918 रु 1934 मसिया से समयटा बहुत इंपोर्टेंट पीरियड महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस लाला लजपत राय सरदार वल्लभ भाई पटेल ये मानकर इंपोर्टेंट रोल से देखागला एवं से इच्छा कले निजर ओन कनसेप्ट रे केमी लोक मान को एकत्रित करें लोक मान भीतर मनोबल तैयारी करेंगे आमे भारत विरुद्ध रे भारत सहित मिसिबा एवं भारत को पाइबा को हेले आमे ब्रिटिशर्स मान को केमती विताड़ित करबा से प्रकार चिंताधारा ताका भितरे सृष्टि करागला विभिन्न मीटिंग द्वारा लेखा द्वारा स्लोगान द्वारा एवं विभिन्न प्रकार मूवमेंट यात्रा द्वारा से माने ताकू तैयारी कले नेक्स्ट आसला फिफ्थ फेज केतबेले स्टार्ट हला 1934 रु 1939 दिस इज अनदर इंपोर्टेंट फेज जो फेज रे वर्ल्ड वार 2 टा कंटिन्यू करिछि एवं वर्ल्ड वार 2 सहित नॉन वायलेंस एंड स्वदेशीमेंट कल्चरल आइडेंटिटी ये तीनटा संगे संगे आरंभ होइछि तेणु वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार समय भारतर अवस्था बहुत शोचनीय हो जाइतिला एवं से शोचनीयता भितर जो नेता माने हमर थिले जो मान को आमे प्रोमिनेंट लीडर्स बोली कहूचे भारतर स्वाधीनता संग्राम रे से माने आरंभ करथिले कोन ना नॉन वायलेंस मूवमेंट नॉन वायलेंस आमे ब्रिटिश मान भितर नॉन वायलेंस मूवमेंट आरंभ करिबा से माने जहा कले मध्य आमे ताकू सहीबानी ताकू जुक्ति करिबा ताको माने कथा को आमे लोक मान को पाखरे पहुंचेबा एवं आईन अमान्य करिबा ये कनसेप्ट आसला से आईनटा आम नुहे से आईनटा जो कराऊँ आमको एक्सप्लॉइट करने ये जो चिंताधारा को लोक मान भितर प्रवेश करें नेक्स्ट आसला स्वदेशी मूवमेंट आम से बहुत परिमाण से जिनिस व्यवहार करते आम पाखे कैलिबर थिला आम तैयारी कर शक्ति थिला आम विदेशी जिनिस को व्यवहार करने फल आमर पैसाटा हाथ को चली जाऊला तेणु से सृष्टि है स्वदेशी मूवमेंट आम केमती निज जिनिस को तैयारी करवा एवं आमे ताको व्यवहार करवा से चरखा रु गांधीजी सूता काटी निज लुगा तैयारी करके पिंधुले तेणु दैट इज ए वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट को सारा जीवन पाली लोक मान भीतर पहुंची एंड स्वदेशी मूवमेंट निज देशर जिनिस को निजे व्यवहार करवा अनदर इज कल्चरल आइडेंटिटी आम जो कल्चर थिले आमर आइडेंटिटी को जाहिर करवा आम से कल्चर को त्याग करवानी आम ब्रिटिश लैंग्वेज जदि जानिले वेश पोशाक जदि पिंधिले आम ब्रिटिशर्स होनी आम से भारतीयता भितर आम जो ओरिजिनालिटी जोड़ा रही से ओरिजिनालिटी भितर आमको निजको प्रतिहत करा पड़ो आमको एस्टाब्लीश करा पड़ो अन्न पाखे निजको प्रतिहत माने स्टांड करा पड़ो ये जिनसा आसला कौटी फिफ्थ फेज तेणु तापर तो आम आरंभ है नेशनल जो इंडिपेंडेंस एरा आम भारतर स्वाधीनता पाइले एवं भारत स्वाधीनता है आम 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 हाथ को आसला आमर शासन दायित्व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी है एवं तापर समयटा हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा बर्तमान सुधा आम जो इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आम देखुचे जो प्रकार सब परिवर्तन घटुची समग्र देश में ता भितर गोटे प्रकार फ्लो रही गोटे प्रकार स्रोत रही से फ्लोटा कौन ना नेशनलिज्म
स्रोतटा हूँ नेशनालीजम जातीयतावाद एवं से जातीयतावाद जो फ्लोटा सेटा आम समग्र भारत जनसाधारण को गोटे सूत्र रे बांधि रखी ये जो नेशनलिज्म कैरेक्टरिस्टिक को ए.आर. देसाई पार्थ चटर्जी आउ एक्सप्लेन कर निजर ओन पॉइंट ऑफ व्यू से देखी भारतीय कौन एवं ब्रिटिशर्स माने कौन भारतीयता भितर कहीं से माने भारत को स्ट्रॉन्ग बोली कही ब्रिटिशर्स मान को विताड़ित कले कौन भितर कैरेक्टरिस्टिक था सेगुड़ाक सब ए.आर. देसाई आ पार्थ चटर्जी चंद्रस्वामी एमन एक्सप्लेन कर तुम पढ़ले बहुत सर्ट रे से कहते तार कैरेक्टरिस्टिक जोटा कि पूर्व ये डिस्कस कर केमी एनालिसिस कर से एनालिसिस भितर से ब्रिटिशर्स मान को बुझी से भारतीय मान को बुझी भारतीय कल्चर को बुझी भारतर डाइवर्सिफिकेशन को बुझी ता भितर से गोटे स्वतंत्र बाट से पाई गोटे वे से देखी क्या भारतीय मान को तापर कि से गोटे दिगरे से जाइए भारत को गोटे इंडिपेंडेंट राष्ट्र आकार तैयारी कर कंक्लूड कले दैट इज नेशनल डिस्कोर्स देन विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज यूनिट 4 ए ब्लॉक 1 रो एटा होची लास्ट चैप्टर एटा ए चैप्टर हला सबलैटरल क्रिटिक माने ता अर्थ होची सबलैटरल क्रिटिक को एक्सप्लेन करूची दैट इज ब्लॉक 1 रो यूनिट 4 रे रहिची सबलैटरल माने होची दलित अनग्रसर सामाजिक अर्थनैतिक दुर्बल आमे निज को स्वाधीन भारत राष्ट्र संतान बोली कहूचे किंतु आम भितर अनेक भिन्नता रही आम भितर अनेक क्लास सिस्टम रही केतक रही माने उच्चरे केतक बहुत नीचरे एवं ताठू आहरी नीचरे लोक सब रही किंतु से ठीक भाव जो न्याय्य अधिकार आमे भारत रे एते वर्ष धरी स्वाधीनता पाइले किंतु आमे पाखे प्रकृत अधिकार पहुँचे पारिनी से सब कौन ना से विभिन्न क्षेत्र में अवहेलित आज भी से विभिन्न क्षेत्र में अवहेलित जो अवहेला से पाई इंडिपेंडेंट प्री इंडिपेंडेंस टाइम रे कि राजा समय रे जो अवहेला पाई आज से प्रकार अवहेलार शिकार होती से विषय जो मैंने स्वरोत्तोलन कर विषय पढ़ा को आम ये चैप्टरटा तैयारी प्रथमे सबलैटरल कौन माने दलित अनग्रसर सामाजिक अर्थनैतिक दुर्बल व्यक्ति एम सब किए प्रथमे ये जो कॉन्सेप्टटा एंटायर चैप्टर को गोटे शॉर्ट स्केच रे गोटे कैरेक्टरिस्टिक भितर मुझे तुमको एक्सप्लेन कर दूची प्रथम जिनस है जो मैंने पायोनियर सबलैटरल क्रिटिक रे जो मैंने क्रिटिसाइज करचंती ये जो दलित सामाजिक दुर्बल से लोक मान उठाइवाई समग्र मेन स्ट्रीम सहित जो जातीय स्रोत रे सामिल करने जो मैंने चेष्टा करें रणजीत गुहा डेविड हार्डीमैन बी.आर. आंबेडकर एमाने होचंदी दे आर दी पायोनियर्स जो मैंने यही दलित मान विषय बहुत चिंता करमिति जातीयता स्रोत रे सामिल करी हबो इंडियन मेन स्ट्रीम सहित जोड़ी हम से विषय से अनेक प्रकार स्टडी कर एनालिसिस कर दे आर अदरवाइज नोन एज क्रिटिक्स आम से जोटा कहूँ सबलैटरल क्रिटिक से आम क्रिटिक बोली ग्रहण करुचे को मान को रणजीत गुहा हार्डीमैन बी.आर. आंबेडकर एमान को आम क्रिटिक बोली ग्रहण करुचे कहीं से क्रिटिसाइज कर भारतर शासन प्रणाली को लोक मान चिंताधारा को लोक मान जो घृणा कर माने भावधारा को से क्रिटिसाइज कर केमिति आमे मेनस्ट्रीम भितर को आनिबा कौन कौन तांकर अभाव रही कौ प्रकार से दलित हो सामाजिक स्थिति केमिति से दुर्बल होती इकोनॉमिकली केमिति डाउन टू रेन होती से गुड़ा को से फाइंड आउट कर
ये जो ये कॉन्सेप्ट रो ये एरिया रो प्रथम इंटेंशन टा कोन ना दैट इंटेंशन इज टू अंडरस्टैंड द प्लाइट्स ऑफ डाउनट्रोडन डिप्रेस्ड नेग्लेक्टेड ग्रुप्स एट पार विथ द नेशनल मेनस्ट्रीम आम भितर आम कहूनी जे आम समस्त भारतीय हो गलु समस्त रिच हो गलु कि सोशली एडवांस हो गलु आम कहीपर आम भितर क्लास सिस्टम रही कास्ट सिस्टम रही दलित निष्पेषित जाति रही एवं से माने को बुझा से कहते आमर ये जो चैप्टर मेन इंटेंशन हूँ टू अंडरस्टैंड दी प्लाइट्स प्लाइट्स माने दुख भितर कौन सब प्लाइट्स रही कौ प्रकार लैकुना सब रही दैट इज प्लाइट्स ऑफ डाउनट्रोडन डिप्रेस्ड नेग्लेक्टेड ग्रुप एट पार विथ द नेशनल मेनस्ट्रीम रे कौन ना जातीय स्रोत में समस्त सामिल हे उन्नति हम समस्त उन्नति हम एजुकेटेड हे समस्त एजुकेटेड हे प्रॉपर्ली कई जड़े बिना एजुकेटेड शिक्षा न पाई रही जाई परिबनी इकोनॉमिकली किए माने माने दी ओळा खाई न पारिक से माने भोक उपास रहिबो ए प्रकार जिंस हबनी कि ठिंडा लुगा खंड भी पाइबनी पिंधिया पे तेणु ए प्रकार जिंस जेमती भारत में न घटे कौन सी लोक डिप्राइव न हुए से माने समस्त नेशनल मेनस्ट्रीम भीतर को आसीबे एवं जातीय स्रोत रे शामिल हेबे हला ये जो नेग्लेक्टेड ग्रुप्स को माने सब हेले मु कहि ना सच ग्रुप्स आर दलित आदिवासी शेड्यूल ट्राइब्स वीकर सेक्शंस पीजेंट्स शेड्यूल कास्ट एमान हेले नेग्लेक्टेड ग्रुप्स नेग्लेक्टेड कौन से ना कौन से कारण को से नेग्लेक्टेड मु नेग्लेक्ट कथा कहि दैट इज इकोनॉमिकली नेग्लेक्टेड सोशली नेग्लेक्टेड एजुकेशनली नेग्लेक्टेड ए जो नेग्लेक्टेड ग्रुप उड़ा रहिला से विषय आम जो आज पढ़ा से विषय से जाना और से विषय जो मैंने पुंखानुपुंख आनालीसिस कर ना सब कहली आउ भितर सबुठारु इम्पोर्टाट और प्रोमिनेंट लीडर होउछंती बाबाराव आंबेडकर दे आर द मेजर पार्ट ऑफ इंडियन नेशन आमे आमे कौन कहूचे जे आमे भाबुचे जे ये जो पीजेंट्स दलित आदिवासी वीकर सेक्शन ट्राइब शेड्यूल कास्ट पीजेंट्स एमाने होउछंती मुष्टिमेय लोक किंतु एक्चुअली से कहते ना एमाने मुष्टिमेय लोक नहंती से होउछंती कोर लोक जो मान द्वारा भारत तैयारी होउछि कोठा बाड़ी आरंभ करी कल कारखाना आरंभ करी रास्ता घाट आरंभ करी सब जिनस गुड़ाक तैयारी होउछि तांको द्वारा तेणु यही लोक माने ही होउछंती भारतर कोर एरिया रे लोक एवं दे आर द मेजर पार्ट ऑफ इंडियन नेशन भारत जदि आम भारतर गोटे जाति बोली कहबा से भारतीय जाति भितर एमाने होउछंती गोटे कोर पार्ट इंपोर्टेंट पार्ट हु आर हेलो सर यस यस को सर गोटे डाउट थिला सर आपण जो प्रीवियस चैप्टर ता जे पढ़े नहीं नेशनल लिस्ट हां हां हेलो हां को हाँ सर सेथरे जो एम चौधरी एआर देसाई सर एमाने एक्चुअली इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ना एमाने किए थिले सर एम चौधरी एआर देसाई आपण जो कहथिले एमाने होउछंती सोशियोलॉजिस्ट they are the social thinkers इंडियन सोशियोलॉजिस्ट इंडियन सोशियोलॉजिस्ट they are social thinkers जो माने भारतर कल्चर को भलो भाव रे जानि चंती एवं ताको एक्सप्लेन करचंती आमे जो जिनसटा को साधारण लोक बुझी पारेनी अति छुटिया कथा को हम जोटा बुझी पारेनी सेमाने सेटा को अति सुंदर भाव ताको बुझीचंती एवं जा पर लोक माने ताको ग्रहण करचंती जे एआर देसाई ताकर गोटे एरिया रे स्टडी करचंती चौधरी सी ताकर गोटे एरिया रे स्टडी करचंती तेणु ये जो स्टडी गुड़ाक तारी उपरे आमर प्लानिंग तैयारी आमर प्रोविजन्स तैयारी कन्स्टिट्यूशन तैयारी तेणु ये कन्स्टिट्यूशन जो आम भारत जो संविधान बी आर आंबेडकर जोटा कले से जो सोशियोलॉजिस्ट मान थिंकिंग को ग्रहण कर तेणु दे आर द मेजर पार्ट ऑफ रंजित गुहा भी से भी माने सोशियोलॉजिस्ट थे रंजित गुहा सोशल थिंकर हां सेमान को हमें सोशल थिंकर आकार नबा जो माने कल्चर विषय भारतीय कल्चर विषय ताको मुखानुपुख माने स्टडी करछन एवं तांको चिंताधारा को केमिति रिप्रेजेंट करछन सेही तांकर माने से पैराग्राफ रे लिखा है
Okay. the Okay, nationalities sir. who are Thank you, sir. marginalized for various regions, that is educational point of view, economic, political, social and religious. ତେଣୁ marginality ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କହୁଛେ ନା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ particular ଏରିଆକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ସେ ଏରିଆ ସବୁ ମୁଁ ଆ ଭିତରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ, କିଏ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନି, କିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି, ଯଦିଓ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାର ସୁଯୋଗକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିନି। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବାପା ପାଠ ପଢ଼ିନି, ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଇକୋନୋମି ତାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେମିତି ଯଦି ଇକୋନୋମିକୁ ସେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ବାଧାବିଘ୍ନ ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସିଚୁଏସନରେ ସେ ମାନେ କରିବ କ'ଣ? ତାପରେ କି ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ ସେ ଦେଇପାରୁନି, ସେମାନେ ଏଜୁକେସନାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ଇକୋନୋମିକାଲି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ରହୁଛି। ତା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ଦୁଇ ଓଳା ଖାଇବାକୁ ପାଉନି ତାହେଲେ ସେ ତା ପିଲାକୁ ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବ? ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼େଇବ? ତାକୁ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ଦେବ? ସେ ତ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ସାଙ୍ଗରେ ତା ବିଲରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଜିନିଷ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରପର ଏଜୁକେସନ୍ଟା ପିଲାକୁ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଇକୋନୋମିକାଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଲିଟିକାଲ, ସୋସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜିଅନ୍ এইগুଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ଯେ ତାକୁ ଦଳିତ ଆଉ ୱିକର ସେକ୍ସନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପଲିଟିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଗ୍ରୁପ୍ ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ରୁପରେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ରହିଲା, ସେ ଜମିର ମାଲିକାନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷ କଲା ସିଏ, ଚାଷର ମେଜର ଭାଗିଦାରୀ ସେମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ତାଙ୍କର ତା ପାଖରେ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗରିବକୁ ସେ ଗରିବ ହେଇକି ରହିଗଲେ। ସୋସିଆଲି ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ଶୂଦ୍ର ଗ୍ରୁପର ଲୋକ ରହିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ତମେ ମାନେ ଅଛୁଆଁ, ତମେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି, ତମେ ଏ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବନି, ତମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇ ପାରିବନି କିମ୍ବା ତମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ରିଲିଜିଅନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବଢ଼ିଲା। ତମେ ତ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ତମେ ଏ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ, ମୁସଲିମ ମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମାନେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଲାନି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ସବୁ ନେଇକରି ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ସବଲାଟରାଲ ଗ୍ରୁପ। This sublateral group subsequently becomes a core area of the study by different sociologists. এবং সেই সোସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ, sociologists who are the sociologists, they are the social thinkers. ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆମର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବଲାଟରାଲ ଗ୍ରୁପକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିଲି, ସେମାନଙ୍କ ନିଜର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାୟୋନିୟର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପାୟୋନିୟରଙ୍କ ଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦଳିତ ଜାତି ପାଇଁ ତାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୋସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ମାନେ, ସୋସିଆଲ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତ ମୁଁ କହିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ରଣଜିତ ଗୁହା, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭ୍ୟୁ, କୋଉ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କରିଛନ୍ତି ନା ଏଲିଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ପ୍ଲେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ସବଲାଟରାଲ ଗ୍ରୁପ। ଏଲିଟ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏଲିଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ପଲିଟିକ୍ସ କରି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଉପରକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ସେମାନେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବେ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ରଣଜିତ ଗୁହାଙ୍କର ମେନ୍ ଷ୍ଟଡି ହେଲା ଯେ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦି ନୋସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଇଡିଓଲୋଜି ଥିଙ୍କିଂ ଅଫ୍ ଏଲିଟ୍ ପଲିଟିକାଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ।
जो माने शिक्षित राजनेता जो माने रहिले से माने केमिति एमान को एक्सप्लॉइट करचंती एवं काहे की एक्सप्लॉइट करचंती तार कारण गुड़ाक से खोजिक बाहर करचंती विभिन्न एरिया को जाई एरिया रे स्टडी करी लोक मान सहित मिसी लोक मान व्यू पॉइंट को कलेक्शन करी ताकू से एनालिसिस करी आम जतबे ताकू पुटपुट करचंती सेटा हमर प्लानिंग पई भारतर संविधान तैयारी करिया पई एवं भारत को आहुरी मजबूत करिया पई से गोटे गोटे खोराक जोगै सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स मु कहली डेविड हैडीमैन तांकर उद्देश्य मत भिन्न थिला तांकर स्टडी एरिया मत भिन्न थिला से दलित उपर से काम करचंती कि गोटे न्यू स्टैंड पॉइंट न्यू एरिया को टच करके तांकर उद्देश्य थिला इंपोर्टेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन रूरल सोशियोलॉजी पीजेंट्स एंड आदिवासी सी ताको स्टडी कले अन्य गोटे डायमेंशन ने अन्य गोटे एरिया को लेकिन सी स्टडी कले दैट एरिया इज कॉलोनियल रूल रो इम्पैक्ट केमती पड़ी आम जा पूर्व देखीचे ब्रिटिशर्स माने 100 वर्ष भारत में शासन करछन तेणु 100 वर्ष इट इज नॉट ए सिंपल थिंग गोटे आज ना दिने दी दिन नुहे 100 वर्ष धरिक से मैंने शासन करने भितर अनेक किसी घटना घटी एवं से माने बहुत बड़ी भाव में यही जो दलित मान को यूज कर कौन ना तांकर सुविधा से माने ताको यूज कर तेणु तार गोटे बड़ धरण इम्पैक्ट पड़ी दलित मान एवं से दलित मान कौन है ना रूरालाइट्स जो मैंने गाँ गहल बसवास कर अशिक्षित इकोनॉमिकली डाउन ट्रोडेन एंड पॉलिटिकली दे हैव नो राइजिंग से माने पॉलिटिक्स को आसी पारना जेहेतु तंकर एजुकेशन नहीं इकोनॉमिकली बहुत पोर पॉलिटिकली मतलब डिप्राइव्ड तेणु ये घटना केमी घटी ना ब्रिटिशर्स मानकर राइज फल एवं तार इम्पैक्ट पड़ी से नेक्स्ट आसला पिजेंट्स जो पिजेंट्स माने रहिले पिजेंट्स मु कहितली गतकाली जे पिजेंट्स होती गोटे इंटरमीडिएट ग्रुप से माने रूरल लोक रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल भीतर गोटे ब्रिज तैयारी करती से माने बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट जमती रूरल लोक मैंने एग्रीकल्चरिस्ट एंड आर्टिजन केवल जे से एग्रीकल्चरिस्ट नुहे से आर्टिजन विभिन्न प्रकार कर्म कृषि को लेकर कि पिजेंट मानकर मेन काम हूँ चाष करवा एवं चाष संबंधी जिते सब तार प्रोडक्शन को बिकिबा एवं ताको विभिन्न एरिया रे ताको पहुँचे तेणु एमाने गोटे ब्रिज तैयारी करती क्या भितर ना रूरल लाइट्स का भितर सर पिजेंट्स आर सिमिलर टू फार्मर ना हाँ दे आर फार्मर्स आवर पिजेंट्स आर सिमिलर टू फार्मर दे आर फार्मर्स यस यस किंतु फार्मर भितर तांकर आ गोटे अछि ना बिजनेस करबा गोटे कल्चर को आउ गोटे कल्चर सहित शामिल करिवार से गोटे माध्यम मानकर गोटे रूरल लोक से चाषबास करुच्ची किंतु से बिक्री करिवार प्रणाली जानी कौटी नहीं बिकिब कौ हाटर नहीं बिकिब केमिति कले बेसी भल पैसा मिल से विषय से जानी किंतु ये जो पिजेंट माने से माने तांको भितर गोटे सेतु बंध तैयारी करती प्रोडक्ट सब आनिबे निजे ताको चाष करेंगे कि निजे प्रदर्शन कर जिन को लेकर भल भल मार्केट रे ताको सेल करेंगे एवं जहाँफल कि सी जो पैसाटा से रोजगार करेंगे दे आर मोर और लेस रिच तेणु ये पिजेंट कम्युनिटी भितर रही माने कौन हीनमान्यता एवं से दलित गोटे ग्रुप्र एजुकेशन नहीं पॉलिटिकली प्रोमिनेंस नहीं सोशली से डिप्राइव्ड अन्य माने डिप्राइव्ड केस रे देखते किंतु स्टिल दे हैव ए कम्युनिटी एवं से कम्युनिटी रोलटा बहुत इंपोर्टेंट ए जो रूरल आउ अर्बन मान भितर जो गैपटा को तैयारी करिबार नेक्स्ट एरिया लोक मान भीतर जोटा कि हैडीमैन स्टडी कर आदिवासी ये जो आदिवासी मान भितर सी बहुत इंटरेस्टिंगली भितर प्रवेश कर सी देखी कौन ना ये जो मर्चेंट माने जो विदेशी मर्चेंट माने से माने कौन कर आदिवासी भितर लिकर ट्रेडिंग माने मद को प्रवेश करेले जहाँफल कि आदिवासी मान जो संपत्ति से मद पीकरी गुड़ाए पैसा से माने बर्बाद कले निजे से ठीक वे निज को एस्टाब्लीश कर पारे तेणु से एक्सप्लोट करने को आरंभ कले
ये हार्डीमैन जो देखिले जे आदिवासी माने मेन विक्टिम होचंती लिकर रो तापरे से गोटे मूवमेंट स्टार्ट कले जोटा कि देवी मूवमेंट एवं से देवी मूवमेंट कौन मु जेतले आमे भितर को जीवा मु ताको डिटेल कहबी तेणु लिकर को नहीं देवी मूवमेंट स्टार्ट कले जोटा जोटा कि आदिवासी मान को गोटे उन्नति करिवारे से गोटे बाट देखिले केमी से माने मेन स्ट्रीम को आस परिबे तार गोटे बाट से तैयारी कर नेक्स्ट आसिले किए ना बी.आर. आंबेडकर अंकर रोलटा हूँ गोटे भिन्न प्रकार रोल एमाने भारतीय समाज को भिन्न भिन्न दृष्टि स्टडी करने को जो बाट देखी किंतु आंबेडकर सी भारतर समग्र भारतर दलित समाज को एक भिन्न दृष्टि से देखी एवं से दृष्टिटा कौन ना इम्पैक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम ऑन लो कास्ट पीपल दलित शेड्यूल्ड ट्राइब एससी पीपल ये मान उपरे आमर जो कास्ट सिस्टम रो जो इम्पैक्ट पड़ी ताकू से एनालिसिस कर आम देखी कास्ट सिस्टम टार कौन ना आम बेसिकली कास्ट सिस्टम टाक चारि भाग विभक्त कर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र केवल आम देखा गले एक्चुअली तीन हूँ प्रोमिनेंट ग्रुप इन कास्ट सिस्टम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तेणु यही तीन ग्रुप जो मैंने काम कले जो मैंने सेवा कले से शूद्र तेणु ये जो शूद्र को जो कम्युनिटी रही शूद्र कम्युनिटी किए तार किसी गोटे आइडेंटिटी ना तार गोटे गोटे स्थिरता ना तेणु से माने पर्टिकुलाली आसिले को ग्रुप रे ना दलित ग्रुप रे से माने डिप्राइव्ड ग्रुप रे आसिले एवं से डिप्राइव्ड ग्रुप को प्रथम फाइंड आउट कले कि बी.आर. आंबेडकर एवं सी निजे में गोटे दलित ग्रुप लोक एवं से को बुझिया ठीक भाव में एनालिसिस करने पाखे यथेष्ट ज्ञान रही एवं सी देखिले जे यही लोक मान को आम बड़ करने को हेले उत्थान करने को हेले मेन स्ट्रीम भितर को आने को हेले आम किसी करने को पड़ो तांकर एजुकेशनली डेभलप करने पड़ो इकोनॉमिकली डेभलप करने पड़ो सोशल स्टिग्मा भितर जोटा जो सोशल स्टिग्मा रही से स्टिग्मा रु बाहर माने मुक्ति दबा को पड़ो एवं से कौन कले ना जिते आमर भारतर संविधान तैयारी कले से तो सब माने विज्ञ और एजुकेटेड लोक अनेक लैंग्वेज मत से जानी एवं जो से भारतर संविधान तैयारी कले से प्रथम जिनटा को रखिले जे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एवं से शेड्यूल्ड कास्ट एवं शेड्यूल्ड ट्राइब को भितर से माने मेन स्ट्रीम को आनिया को हेले आमे विभिन्न प्रकार वेलफेयर स्कीम प्रोटेक्टिव मेजर्स प्रोविजन्स एगुड़ा को सब इनकॉर्पोरेट कले एवं जहाँफल कौन है से प्रॉपर वे रे प्रोटेक्शन दे हला एवं प्रोटेक्शन न दबा फल से इकोनॉमी उन्नति है से माने एजुकेशन पाइले प्रॉपर वे रे एजुकेशन पाइले सोशली जो माने डाउन टू आखिरे देखुले से माने धीरे धीरे से सोसाइटी भितर निजर माने स्थापत्य को जाहिर करने को करें तेणु यही दलित मान बी.आर. आंबेडकर दान अपूरणीय नेक्स्ट सहित आसोसीएट होकर कम करते जोटा जहाँ पाखु सी बहुत जिन किसी शिखी चिंताधारा को ग्रहण कर महात्मा गांधी यही दलित मान बहुत चिंता कर बेसिकली कहते जो मैंने हरिजन चिल्ड्रेन ऑफ गॉड बोली नामित करते ये जो एससी कम्युनिटी जो दलित माने रही शूद्र कम्युनिटी लोक ताको केमिति उन्नति माने ऊपर को आनिबे एवं से माने डिस्क्रिमिनेट हेबेनी इकोनॉमिकली एजुकेशनली सोशली पॉलिटिकली रिलीजियसली से माने जेमति डिस्क्रिमिनेट न हेबे सेति पई तांकर यथेष्ट अवदान रही आंबेडकर महात्मा गांधी चिंताधारा को से बहुत माने ग्रहण कर कि आम आज गोटे उन्नत धरण भारतीय संविधान आम देखिपार यहाँ हूँ यही चैप्टर सबूक माने देखा गले नटसेल मुझे एक्सप्लेन करदेली बर्तमान आम ता भितर को जीवा प्रत्येक पॉइंट को प्रत्येक एरिया को आम टच करवा बुझा चेष्टा करवा प्रथम है आम देखिले
ग्रुप सबलेक्टन ग्रुप भितर दलित सामाजिक अनग्रसर यस सर प्रशांत गौर विश्वास सर यस यस सर 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 तीन जन जंगर सोशलिस्ट तांकर टोटल ऊपर तांकर व्यूटा सर शॉर्टली सर टिके कहले सर बोल टिके संक्षेप रे ए जो तीन जन कथा हम कहली आंबेडकर आउ जे हमर पुआ हां से तीन जन जो एरिया ऊपर से माने काम करछन तो आया तो शॉर्टली से माने को बेसिस ऊपर से माने तांको स्टडीज ता से कर जंदी ए जो रणजीत गुहा जी जो सोशियोलॉजिस्ट जे के कार पर काम करछन्ती माने दलित जाति ऊपर तांकर माने चिंताधारा को से करके सोसाइटी को स्टडी करछन्ती भलो भाबे सी मेन एरिया को जाइछन्ती एलिट पॉलिटिक्स सी कहउछन्ती जे एलिट पॉलिटिक्स फल रे एमाने दलित होइछन्ती एवं एमानकर उन्नति हे पारुनी उत्थान हे पारुनी तेनु एलिट पॉलिटिक्स कोन ना जो माने शिक्षित एवं शिक्षित हे कि से माने पॉलिटिक्स करछन्ती जो माने आमे जो से पॉलिटिक्स करछन्ती नेता साजिछन्ती नेतागिरी करछन्ती हमको शासन करछन्ती से माने ही ए डिस्क्रिमिनेशन टा को तैयारी करछन्ती काइना तांकर उन्नति हबा पई से माने ए डिस्क्रिमिनेशन टा को तैयारी करछन्ती जा पर कि ए सबलेक्टन ग्रुप टा जेमति दलित हे कि रहबा कथा सेमति रहि जाउछि हम देश मोटे कोटे छोटिया उदाहरण दोछि हम देश एते वर्ष स्वाधीन हलानी आमे आदिवासी मानक पई एवं शेड्यूल कास्ट लोकन पई अनेक प्रोविजन करिचे अनेक तांको इकोनॉमिकली उन्नति करिया पई स्कीम सब तैयारी करिचे किंतु से माने जहा थिले से ही रहिछन्ती बहुत कम लोक जे कि मेन स्ट्रीम भितर को आछन्ती भलो पाठ पढिछन्ती आईएएस हेछन्ती डॉक्टर हेछन्ती भलो बिजनेसमैन हेछन्ती किंतु बहुत लोक रहि जाइछन्ती सेही गां गहळ रे से आदिवासी एरिया रे रहिछन्ती एबे भी सेमती जंगल रु फळमूल आनी कि खाउछन्ती किंतु एक घटिची कोन पई से माने ठीक समय रे आसन्ती तांकर वोट नवा पई किबा तांकठू जिंस पाइबा पई तापर से माने ताको भूली जान किंतु ए जो घटनाटा को हाइलाइट करिया पई तांको विषय चिंता करिया पई रणजीत गुहा प्रथमे गोटे आंदोलन सृष्टि करथिले एवं सेही आंदोलनटा होछि एलिट पॉलिटिक्स प्लेड कहले एलिट पॉलिटिक्स प्लेड इन इंडियन हिस्ट्री अगेंस्ट सबलेक्टन ग्रुप्स एटा को से एम्फासिस देले तांको एरिया रो फर्स्ट एरिया होछि एलिट पॉलिटिक्स जो डेविड हैरीमैन जो जे आसले नेक्स्ट रे तांकर एरियाटा होछि इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल किछ कहबो कि हां नो सर डिस्कस कर से हैरीमैन कर एरियाटा हला सी कहउचंती जे ये तो कहले एलिट पॉलिटिक्स द्वारा माने दलित ग्रुप तैयारी हेछि हैरीमैन कर कांसेप्ट होछि ना एलिट पॉलिटिक्स मान का द्वारा नुए इट इज बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल इंपैक्ट जो 100 वर्ष धरे के ब्रिटिशर्स माने आम ऊपर शासन कले से माने चाहिले जे एमाने दलित होई कि रहंतु से माने हमर बिल चाष करंतु से माने हमको जंगल रु जिंस आनी कि दियो जोगांतु से माने भलो पाठ न पढंतु जा पर कि आमे ताको शासन करि परिबु ताको एक्सप्लॉइट करि परिबु से माने जदि विज्ञ होई जेबे आमे ताको प्रॉपर वे रे एक्सप्लॉइट करि परिबुनी तेनु ताकर स्टडीटा हला जे इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन रूरल सोसाइटी पिजन सोसाइटी आदिवासी सोसाइटी और आदिवासी कम्युनिटी एवं से गुडा ऊपर स्टडी कले ये हैरीमैन गोटे बढ़िया मूवमेंट तैयारी करछन्ती जोटा कि आमे देवी मूवमेंट बोले कहूचे सेटा को तुम एक्सप्लेन कर देबी से केमिति ता देवी मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कले एवं आदिवासी मानक भितरे गोटे एकाग्रता एवं उन्नति करिवार गोटे बाट बतै देले सेटा को देखै छथि आ तो बीआर अंबेडकर तांकर एरिया होची कास्ट को नेकी जे कास्ट सिस्टम ता कोन एवं सेटा ता भितरे कोन लैकुना रहिछि कोन फ्लॉज रहिछि जो फ्लॉज पई गोटे दलित ग्रुप तैयारी हिछि एवं से माने सेही दलित होई कि रहि जइछन्ती एमानक दृष्टि कारण हायर ग्रुप रो लोक मानक दृष्टि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य मानक दृष्टि रे गोटे शूद्र बोली गोटे कम्युनिटी रहिछि जो माने दलित ग्रुप रहिछि से दलित ग्रुप काहे कि सेट रहिछि ताको से हाइलाइट करछन्ती एवं तांको केमिति उन्नति करके आमे मेन स्ट्रीम भितर को आनिबा से जिंसटा को से देखैछन्ती एमएन श्रीनिवास जने सोशियोलॉजिस्ट जो संस्कृताइजेशन प्रोसेस को देखैछन्ती जे गोटे लोक चाहिले सी तार कर्म बल रे सी ऊपर कास्ट को जाई परिबो जने शूद्र अछि से मध्य तार भल कर्म करिकरी से मध्य ऊपर ग्रुप को मध्य जाई परिबो तार ऊपर ग्रुप को वैश्य अछि
सी क्षत्रिय ग्रुप को जापर क्षत्रिय अच्छी सी ब्राह्मण ग्रुप को जापर तेणु यहाँ कौन गोटे रिजिड जिनस नुहे तार चालीचलन व्यवहार वेश पोशाक सबुथ परिवर्तन जो आसीज सी ब्राह्मण भाया तार बिहेव करने को आरंभ कर सी ब्राह्मण भाया पूजा पार्वण सी कर एरिया तेणु ये जो सांस्क्रिटाइजेशन मूवमेंट इट इज वन टाइप ऑफ मूवमेंट टू not to माने stigmatize the downtrodden or depraved group. थैंक यू सर। ओके आमे नेक्स्ट एरिया को जीवा ए जो सबलेटरन वर्ड को प्रथमे कॉइन करथिले किए एंटोनियो ग्रानेसी जने जाउचंती माने फॉरेनर सी बेसिकली देखी कौन ना आम जो माने सबलेटरन ग्रुप डेफिनेशन और एनालिसिस होचे ए ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट ऑक्युपाई पावरफुल अपर क्लास स्टेटस इन ए क्लास रिडन सोसाइटी गोटे कास्ट रिडन सोसाइटी रे गोटे ग्रुप सब बेले तल ग्रुप रे रही जाती से माने अपर ग्रुप लोक मान द्वारा एक्सप्लॉइटेड होती एवं से माने से ग्रुप टे को ऑक्युपाई करि पारंती नाही तेणु से जो ग्रुपटा रहीगले ताको कहते सबलेटरन ग्रुप सेमती आर्मी रे सब रही जमी आम देखुचे कौन ना जिते पिंपुड़ी माने माने गोटे लाइन करी धाड़ी बांधी जाती से कौन सी प्रकार माने रोल न थाए से पूरा लाइन करके जीवे जो खाद्य अच्छी से खाद्य को आणवे समस्त टाणी टाणी ने घरे पहुँचे देवे जोटी कि राणी पिंपुड़ी थी तारी पाखे से पहुँचे यही जो प्रकार जो चिंताधारा से चिंताधारा भितर एमाने होती गोटे प्रकार दलित एवं से जो दलित ग्रुपटा हूँ किसी वॉइस ना से केवल काम करेंगे से कार्मिक पिंपुड़ी भली जमी सेमती गोटे आर्मी भितर गोटे ग्रुप रही जो ग्रुपटा को से एमती भाव में एक्सप्लॉइट करते यहाँ से देखिए ये जो प्रकार सबलेटरन ग्रुप रही आर्मी रे से आर्मी रो से क्लास स्ट्रक्चर फल ये माने हायर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास सब लोअर क्लास ये जो क्लासिफाइड जो सोसाइटी है आम विभिन्न प्रकार ग्रुप को देखुचे जो ग्रुप भितर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर से डाउन ट्रोडन होती आउ एक्सप्लॉइटेड होती अपर ग्रुप द्वारा तेणु यही प्रकार चिंताधारा सबलेटरन कॉन्सेप्ट बा दलित कॉन्सेप्ट या सबलेटरन बेसिकली आम ताको कहिबा जे डिनोट्स इन्फीरियर रैंक इन आर्मी सबलेटरन माने होची डिनोट्स इट इंडिकेट्स द इन्फीरियर रैंक इन द आर्मी रे विभिन्न प्रकार रैंकिंग अछि आम जोटा क्लास स्ट्रक्चर कहूचे क्लास बोली कहूचे से आर्मी रे मध्य विभिन्न प्रकार रैंकिंग अछि एवं ये तल रैंक रे रहिला से होची सबलेटरन but in latter used in broad sense एटा गोटे नैरो सेंस केवल गोटे नैरो एरिया रे यूज कराई किंतु आमे ताको हमर सोशियोलॉजिस्ट माने ताको गोटे ब्रॉड एरिया को नै आछंती तो जो मन का नाम कहली अंबेडकर ठू आरंभ करी अन्य माने से माने ताको गोटे ब्रॉड एरिया ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स रे ताको यूज करछंती एवं आइडेंटिफाई different attributes such as economic condition, ethnicity, gender, caste, sexual orientations, etc. ये जो जिनसोटा को मुझे कहली इकोनॉमिक कंडीशन को लेके विभिन्न क्लास सृष्टि रिच क्लास मिडिल क्लास पोर क्लास तेणु एभली कंडीशन फल माने इकोनॉमिक कंडीशन फल गोटे विभिन्न प्रकार क्लासिज्म सृष्टि रैंकिंग सृष्टि एथनिसिटी जे एमाने होचंती आदिवासी एमाने होचंती रूरल लोक एमाने होचंती अर्बन लोक ये जो प्रकार ग्रुप माने चिंताधारा मध्य देखा दीची तबरे जेंडर को लेकरी मध्य आमे देखुचे से भली जिंस जे जेंडर रे कोन रहिचे ना स्त्री लोक पुरुष लोक ए भली जो विभिन्न प्रकार बाछा विचार रहिचे क्षेत्र में देखाउची जे स्त्री लोक माने बेसिकली वीक दुर्बल एवं से माने रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स पाखे रही तेणु यहाँ मतलब जेंडर को लेकिन डिस्क्रिमिनेशन देखा कास्ट स्ट्रक्चर रे डिस्क्रिमिनेशन देखा
तेणु ये जो प्रकार डिस्क्रिमिनेशन टाको से माने देखौछन्ती जे एटा होची सबलैटरल एंड इट इज यूज्ड इन ब्रॉडर सेंस. नेक्स्ट इंपोर्टेंट एरिया होची पीपल आर marginalized in a stratified class ridden society. ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ କେମିତି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଦ୍ୱାରା. ମାନେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଲେୟାର୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଚ ବର୍ଗର ଲୋକ. ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗ୍ରୁପିଜମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହେଲା. ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ ଗ୍ରୁପ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ରାଙ୍କରେ ଥିବା ଗ୍ରୁପ. ସେମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ, କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ, ମାନେ କାଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ, ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋଏଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପରେ, ପିଜନ୍ସ. ଏମାନଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବାରେ ଏଇ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି. ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏରିଆକୁ ଚାଲିଯାଇଛି. In India, Ambedkar, Ranjit Guha and Hadiman worked on this concept. ये जो concept जोड़ा का रहला तारी ऊपर ये एरिया टाको के टच कर नथले, जो एरिया को टच करिया फल रे आमे सेमान को बुझिबा को आरंभ कले. सेमान भितरे कोन लेकुना रहिछि एवं सेमाने आम भଳି जने व्यक्ति तांकर मध्य भारतीयता भितरे नेशनलिज्म कैरेक्टर भितरे तांकर अधिकार रहिछि. सेमाने होउछन्ती कोर एरिया रे लोक एवं तांको द्वारा ही भारत तैयारी हम एवं सेमानकर अवदान मध्य भारतर नेशनलिज्म रे मेन स्ट्रीम रे बहुत परिमाण रही, जोटा को से माने फाइंड आउट करने को आरंभ कले. नेक्स्ट जो एनालिसिस कराई मु हाडीमैन का कांसेप्ट को डिटेल एनालाइज करूची. हाडीमैन का मेन कांसेप्ट है द डेबी मूवमेंट. व्हाट इज दैट डेबी मूवमेंट? ये डेबी मूवमेंट कौन ना इन 1922 स्मॉल पॉक्स ब्रोकन. स्मॉल पॉक्स कौन ना बसंत 1922 रे बहुत रैपिडली स्मॉल पॉक्स व्यापी थिला एवं सही समय कौन होइतला ना एंड बिलीव दैट इट इज द राथ ऑफ गॉडेस देवी. कौन सी देवी को प्रकोप रे ए स्मॉल पॉक्स होउची. तेणु प्रथमे आमे जदि ए देवी को अपाइज करिबा ताको जदि शांत कर दबा ताले ए स्मॉल पॉक्स धीरे धीरे चली जिवो. ए जो देवी कांसेप्ट केमिति आसिला ना the colonial government earns money by selling liquor to the people and poor people who are exploited by the vendors. Colonial people कौन करथिले जतले आको सेही समय प्री इंडिपेंडेंस एरा रे 1922 टा होची प्री इंडिपेंडेंस. तेणु सेही प्री इंडिपेंडेंस समय प्रचुर पैसा से माने रोजगार करथिले विभिन्न भेंडर मान द्वारा, जो माने मद व्यवसाय करती द्वारा प्रचुर पैसा रोजगार करथिले ब्रिटिशर्स माने. तेणु लिकरटा केमिति स्प्रेड ओवर हबो माने आदिवासी मान भितर अन्य दलित श्रेणी लोक मान भितर केमिति स्प्रेड ओवर हबो सेटा को से माने आरंभ करथिले. एवं ए जो एक्सप्लॉइटर्स जो माने जो भेंडर्स माने से माने विभिन्न आदिवासी एरिया को जाइकरी ताको बिकिले एवं लोक माने किछि काम धंदा न करी खाली मद पीकरी सेमानक समय कटिले. तापर ताकर मेन सोर्स ऑफ इनकम जहाँ दिन सारा परिश्रम करिवे मद किनिवे मद पीकरी से माने सब जिनस भूली जिवे एवं सब जाक पैसा से सार देथिबे. तेणु आ द्वारा कौन है ना दि कॉलोनियल गवर्नमेंट earn a good amount of money in माने रोजगार करले का द्वारा ने ई वेंडर मान को द्वारा लिकर सेल करी. जते बडे हाडीमैन देखिले जे मेन एरियाटा होची जो एरिया को नेकरी ए लोक मानकर अवस्था आउरी शोचन हो जाउची, इकोनॉमिक अवस्था बहुत डाउन टोडन हो जाउची. तार मेन कारण होची लिकर. से गोटे उदाहरण दैछन. से उदाहरणटा कोन ना जदी इकोनॉमिकली ताको माने एक्सप्लॉइट करिया को हबो ताले मद होची तार गोटे माध्यम. तेणु जो निशा आसीज से बारंबार से निशा से पैसा खर्च कर दिन सारा जहाँ परिश्रम कर पैसाटा तार उड़ेदेला. तार फैमिली एजुकेटेड हो पारानी,
फैमिली तार माने कौन सी भल जिनस करिया पर तार सुजोग पाइलानी सोशल माने बॉन्डिंग भीतर को मध्य आसी परलानी जेतु ताकर पुरुष लोक सब से मद पीकरी माने बाहर रहिला तापर कि सी कौन सी भल जिनस चिंता कर शक्ति से धीरे धीरे हरेला हाड़ी मैंने देखिले जे आमे यही लोक मान पाखु जदि आमे ये लिकर पीबार जो चिंताधारा दूरी दबा तार गोटे सुंदर सुंदर उपाय हूँ देवी मूवमेंट से समय माने बहुत परिमाण जो आम स्मॉल पॉक्स व्यापी थिला स्मॉल पॉक्स जो मेन पुरोधा होती जन देवी बोली से माने प्रचार करने को आरंभ कले एवं द गॉडेस टू बी सैटिस्फाइड फॉर व्हिच स्मॉल पॉक्स कैन बी इराडिकेटेड लोक मैंने धीरे धीरे लोक मान भीतर प्रवेश कला जे ये जो गॉडेस जो जहाँ स्मॉल पॉक्स होची ताकू जदि आम सैटिस्फाई करें स्मॉल पॉक्स दूरे जी तेणु ये गॉडेस को पूजा करने को से आरंभ कले दि गॉडेस डू नॉट एक्सेप्ट से पूजा भीतर कौन ना से कहले ये जो गॉडेस जो स्मॉल पॉक्स जो देवी सी लिकर पसंद करते नहीं माछ मांस से पसंद करते नहीं एंड पीपुल हैज टू फॉलो इट तेणु ये चिंताधारा जो लोक मान भीतर प्रवेश कर दिगला तेणु लोक मैंने देखले जदि आम जदि लिकर पीबू माछ मद मांस एगुड़ा सब खाइबू आम ताले आमको स्मॉल पॉक्स हम आमको बसंत हम तेणु धीरे धीरे से रिफ्रेन होगा आरंभ कले दूरी जावाक आरंभ कले एवं दूरी जावा फल से लिकर फिश मीट एगुड़ाक पाखु दूरी जाइए से धीरे धीरे ये देवी पूजा करने को आरंभ कले माने यहाँ भूल धारणा ये माने माने ठीक जिनस नुहे तथापि गोटे भल जिनस है कौन ना लिकर जो पीबार जो अभ्यास से मुक्ति पाइले यापर कि से जो मोमेंट सृष्टि है लोक मान भितर दैट इज नोन एज देवी मोमेंट एंड द ट्राइबल्स ऑर्गन gradually the tribals are acquainted with the practice of shamanism and devi कालिसी एबे भी देख आम जब कौन ट्राइबल एरिया को जा आम देखा से भितर गोटे पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एबे भी रही जोटा कि शमानिज्म एवं कालिसी साधारणतः एमाने कहती कालिसी लगिला कालिसी जहाँ देह लगे सी तो ये जो जिनस गुड़ाक माने लिकर पीबनी मद माछ एगुड़ा सब खाइबनी पूरा सोसाइटी रू आलोफिक एवं जो माने कालिसी संस्पर्श में आसवे जो कम्युनिटी जो गाँ जो एरिया कालिसी संस्पर्श में आसवे से मद माछ मांस रू दूरे रे जहाँफल कि एथरू से दूरे रहा फल धीरे धीरे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड डेवलप कला से पैसा को बर्बाद कले से भितर जो माने दूर को पड़े जाते सोसाइटी टू दूर को पड़े जाते परिवार दूर को चली जाते से धीरे धीरे भीतर को आसिले भितर कंग्रिगेशन सृष्टि है एवं से खाइबा पीवा नाच गीत करवा एवं भितर करवा धीरे धीरे आसला सो दैट दे फील एट होम इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन पर्टिकुलर सेटिंग दैट इज ए वेरी इंपोर्टेंट एरिया दैट had been touched. Next concept आसला बी.आर. आंबेडकर मुझे कही बी.आर. आंबेडकर होती बहुत प्रोमिनेंट लीडर जी कि आमर भारतर संविधान प्रणयिता एवं एजुकेशनाली लोक मान को केमिति प्रॉपर वे रे आमे ऊपर को आनी परिबा एवं समस्त को मेन स्ट्रीम भितरे नहीं परिबा एवं समस्त द्वारा भारत तैयारी हो परिबो गोटे सार्वभौम राष्ट्र तैयारी हो परिबो गोटे शक्तिशाली राष्ट्र तैयारी हम तार चिंताधारा प्रथम आसाला बी.आर. आंबेडकर भितर एवं से कले जे इम्पैक्ट ऑफ कास्टम इन लो कास्ट ग्रुप्स advocated on equal status of Dalits, untouchables, Sudras, giving the name of children of God. से को कहले जे सेमान को जदि इक्वल स्टेटस हमको भीतर को आनिबा समस्त समान सेठी कास्ट सिस्टम रो जो डिफरेंशिएशन अछि से डिफरेंशिएशन रहइबनी समस्त से ग्रुप भीतर को जतले आसीबे आमे गोटे
स्ट्रंगर भारत आम या गोटे यूनिफाइड भारत आम या यूनिफाइड नेशन आम गढ़ एवं लोक मान समस्त कंग्रिगेशन फल जदि आम भितर डिस्क्रिमिनेशन वी कैन बिल्ड ए स्ट्रंग नेशन तेणु से विभिन्न प्रकार प्रोविजन तैयारी कले आम संविधान भितर विभिन्न प्रोविजन रहा वेलफेयर मेजर्स रहा सेफगार्ड्स रहा आम जो कन्स्टिट्यूशन जो विभिन्न प्रकार आर्टिकल्स रही सब आर्टिकल्स रही से आर्टिकल भितर पूरा क्लीयरली लिखाई जदि यही जिनस हम तार जदि प्रतिहत किए करे तापर पनिशमेंट हम तेणु जिते आम संविधान को मानुचे से आम अल्टीमेटली ये जो दलित ग्रुप लोक मैंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को डिस्क्रिमिनेट आम करते आम आउ डिस्क्रिमिनेट करूने बर्तमान आउ से प्रकार बाछ विचार से प्रकार डिस्क्रिमिनेशन आउ सहर मानक गाँ मानक किसी रही तथापि बहुत परिमाण दूरे गला किंतु सहर मानक प्राय आउ से जिन सब देखा जाऊँ तेणु आर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आम सोसाइटी आम जातीयता नेशनलिज्म पड़ी तेणु आम जदि यही सोशल थिंकर्स मान कथा चिंता करवा एवं सल्टान ग्रुप मान भितर जो जो माने उद्यम रही ऊपर को आनिबा एवं मेन स्ट्रीम भितर प्रवेश करवा एवं गोटे स्ट्रंगर नेशन गोटे मजबूत जाति को तैयारी करवा से जिनसटा को आम ए देखिपर तेणु आम आज दीटा कनसेप्ट आम एम्फासाइज कले गोटे है नेशनलिज्म डिस्कोर्स आम जातीयतावादटा कौन जानिले एवं जातीयतावाद को लेकर आम भितर जो डिस्क्रिमिनेशन रही जो लैकुना सब रही केमी आम मिटिगेट करवा एवं मिटिगेट कले ही आम गोटे स्ट्रंगर नेशन तैयारी करवा एवं आम भितर जातीयतार मंत्र प्रत्येक लोक भितर रही भावे जे मु एजुकेशनली डिप्राइव्ड इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सोशली डिप्राइव्ड बोली भावेनि एवं से चिंता करेंगे ना आम जहाँ भी काम करवा आम देशपाई करवा जाति करवा आम जाति को गोटे समग्र विश्व गोटे उन्नत श्रेणी जाति बोली हमको प्रतिवाद कर तेणु आम भितर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने ये जो सोशल थिंकर माने सोशियोलॉजिस्ट माने अवदान बहुत बेसी ये मु कनक्लूड करुच्ची जदि को मानकर आपर किसी डाउट अच्छी से मैंने मत इंट्रोगेट करि पचारि पारती जो एरिया रे किसी डाउट रही मुझे एक्सप्लेन कर यस सर आपण जो हैंड रिटन माने निजे बने कि जो शॉर्ट नोट तैयारी करछंती सेटा आम सहित माने केमिति शेयर कर पाथले भलो ही पड़थांदा इजी टू अंडरस्टैंड ही पड़थांदा एक्चुअली अच्छा मु तो सेटा को प्रिपेयर माने से शेयर करबा उद्देश्य रे ताको करि नथली ठीक अछि जदि हबा मु नेक्स्ट क्लास रे मु सेटा को तमान को दे देबी शेयर कर देबी हां सर काली जो आपण सेटा जो माने ट्यूटर पढाइथिले आज सर दुईटा माने एक्चुअली सर आपण पढ़ाई दउछन बट आमे नोट प्रिपेयर करन ना आमे इग्नोर जो बही अछि सेथरे ही फॉलो करी माने पढछु किंतु सेथरे टिके बड़ लागुची आपण पढेला बेले बहुत इजी भी लागुची और सहज भी लागुची माने बहुत भल लागुची तो बेटर होंता आपण जदी शेयर कर पतंते अच्छा ठीक अछि मु ताको चेष्टा करबी ताको तम मन भितर शेयर करिया पई केना सेतरे जो लैंग्वेज अछि जो कि डिफिकल्ट अछि मु त देखिली मु ताको इंग्लिश रे पढाई परथंदी तुमको किंतु जेहेतु इंग्लिश रे पढ़ेले तुमे आउरी कॉम्प्लिकेटेड हे जिवो केना से ठीक बारे बुझियोबनी बहुत गुडे कांसेप्ट होई जोटा कि आमे ओडिया रे जानिबा दरकार ओडिया रे बुझिले ही क्लियरली बुझिले ही आमे इंग्लिश रे लिखि परिबा हां गोटे जदि आमे ठीक बारे न बुझि परिबा ताले लिखि परिबा नहीं यस सर एंटायर जिंस को यस सर को सर ए जो ए ब्लॉग टारे जो चारटा यूनिट सर डिस्कस हला सर एतरे केमे क्वेश्चन पैटर्न सर केमिति कोन आसीबो सर क्वेश्चन तो माने प्रत्येक पॉइंट रो आसीबो तार माने आमे जोडा को माने डिस्कशन कले मु हमनकर आमे जो सोशल थिंकर्स माने विषय डिस्कशन कले एडीमैन हो कि बीआर अंबेडकर हो दे आर नोन एज सोशल थिंकर्स तो एमती क्वेश्चन आछो व्हाट इज देयर आइडियोलॉजीज रिलेटिंग टू द सबलेटरन कल्चर हां हां ओके तेणु यही डिटेल को लेकिन तुम यही तीन सोशियोलॉजिस्ट मानकर व्यूज तुम रिप्रेजेंट करिवो हां सर
सर सर ଆମର एथिरे इग्नो सर एथिरे शॉर्ट टाइप सर लॉन्ग टाइप विथ शॉर्ट टाइप आसीबो लॉन्ग टाइम बहुत आसो हाँ तमें से जो क्वेश्चन पैटर्न टा नहीं आसे तुमरा जो सर हाँ क्वेश्चन पैटर्न टा तुमको दिया जीवो से क्वेश्चन पैटर्न से तुम अकाउंटेड हो सर एटा सर 75 मार्क्स रे होबो ना सर केते मार्क्स रे थियरी टा होबो थ्योरी वो 100 मार्क हाँ तमें रीजनल सेंटर रू बुझीबो केमदी तंकर क्वेश्चन पैटर्न केमदी 100 मार्क रो थ्योरी हो थ्योरी 100 मार्क हाँ क्योंटे सॉरी ଆମର एग्जाम टा केबे हबो सर डिसेंबर सर एक्चुअली ଆମର सोशल ଆମର सेमेस्टर वाइज एग्जाम ना इयरली वाइज एग्जाम এই থরটা ইয়ারলি হবে নেক্সট ইয়ার টু সেমিস্টার হয়ে যাবে अच्छा माने ଆମେ 20 ରେ जॉइन ହେଇଛୁ ନା ତ 20 ରୁ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତମେ ସବୁ 20 ଇୟରଲି ଡିସେମ୍ବର ୱାଇଜ ହବ 20 ଡିସେମ୍ବରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ତାପରେ ତମେ 21 ଜୁନ ରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସେମିଷ୍ଟର ଦବ सर इयरली सर सब सब्जेक्ट गुडा सर दबा पड़ियो सर फास्ट इयरଟା ଇୟରଲି ତାପରେ ସେମିଷ୍ଟର ହয়ে ଯାବ हां सर एई सर एई इयरली सर ता सब सब्जेक्ट एका संगे दबा पड़ियो ହୁଁ 8टा सब्जेक्ट दिया हबो ना सर ହୁଁ थैंक यू सर ओके सर थैंक यू सर okay thank you very much thank you Nandu sir so tomorrow I mean dear learners if you know your friends tell them tomorrow again 6:30 will join okay यस सर thank you very much थैंक यू ओके सर थैंक यू सो थैंक मच थैंक यू पुपलो ये कर दो लीव कर दो समझ